So hello everyone, good afternoon. सारे बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े फ्रेश मूड में हैं। नाम तो बाहर सुना ठंड है और यहाँ पे सबकी लाइक वेरी वार्म स्माइल मुझे देखने मिल रही है, तो इट फील्स ऑसम। तो आप सारे सोच रहे होंगे समीना जी कहाँ है, तो हमारी प्यारी होस्ट साहिबा आज अवेलेबल नहीं थी, तो आई एम कवरिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर। आई होप आप मुझे टॉलरेट कर लेंगे। तो it's a beautiful topic today, very interesting, and I think it's going to be very informative. It's about dementia awareness. So in this, we are going to discuss about symptoms of dementia, how to prevent dementia by positive lifestyle changes, and tips to improve your brain health. तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है डिमेंशिया के साथ। मेरे डैड को डिमेंशिया था, तो इट वाज अ डिफिकल्ट थिंग टू डील विद। so I was looking forward for this session and बहुत कुछ सीखने मिलेगा, and it's better to prevent and get aware about this knowledge and prevent ourselves from all these diseases. So to present this topic, we have our own Kiran Maksood ji. She is here. You can see her. And she holds a master's degree in clinical psychology. She also has a postgraduate certification in clinical assessment, addiction, and cognitive behavior therapy. That's really impressive. She is a registered psychotherapist in Ontario. She works in a settlement organization as a crisis counselor and holds solid background in providing mental health services in the region of Peel to individuals and families dealing with various challenges. She's passionate about helping people and raising awareness on adopting healthy lifestyles. So here we have Kiran Maksood ji. So stage is yours, Kiran ji. We are looking forward to hear more about this topic from you. Gee, thank you. So kind of you. Such a nice introduction. Yeah, I was not even aware about all those things कि ये सब कुछ भी है. नहीं, simple सिर्फ इतना ही है कि I love working with seniors honestly. मैंने start किया जब कनाडा में आई 2014 2015 में working with seniors group से start किया, settlement की तरफ गई, settlement organization में काम किया, as a crisis worker काम करना शुरू किया. At the same time जो है वो I was working on my registration with the college. So as a psychotherapist, I got my registration back in 2016, and then I started doing my supervision hours. Long journey. You need to have your all, everything in place in set for having license here. But here I am today. And Usma, I can share my screen? I think so. Okay. Check कीजिए. नहीं जी, host disable participant to screen sharing. Okay. किरण आप चेक करें आप. ठीक है जी. So anytime इसको बहुत formal presentation में नहीं रखना चाहती, है तो सही education point of view से, but still anytime you can stop me, anytime you can say that, hey Kiran, whatever you're saying, this is not helping, we want to hear not about this but that. तो एक guideline है presentation की, उसको follow करते जाएंगे, but still whatever your questions are in between and whatever information you want to hear, that is important because dementia is itself very huge topic. So I was thinking before we get into this topic, why don't we do quick 5 to 7 minute mindful breathing? Do I have some words for mindful breathing? Let's do that. Sure. Okay, so Usma, for mindful breathing, it is activity which we really do in therapy sessions. This is a technique which help us to calm down, to bring our emotion in the present moment. Whatever जो भी सोचे ख्याल आ रहे होते हैं past के भी, future के भी, शाम में ये करना है, कल वो करना है. So with the help of mindfulness, ये कहते हैं इनकी जो theory है कि वो हमें relaxation मिलती है इससे. ठीक. So this script is in English. Is everyone comfortable with that? Just before, if I yes, I think so. Confirm.
Yes. If anyone is not comfortable, I can do other activity. You can leave it in the chat box. Yeah, I think everybody here understand English. Yes. Okay. Okay, so perfect. You can turn off your camera. थोड़ी देर आराम से चेयर के साथ रिलैक्स होके बैठे, सिर्फ मेरी आवाज सुने और एंजॉय करें मेरी आवाज को, और अपने ब्रेन में अपने आप को जितना रिलैक्स करने की कोशिश कर सकते हैं. मैं भी टर्न ऑफ कर दूंगी कैमरा, के आपको ऐसा ना फील हो मेरी ये लगी हुई है ना. चलिए, हो गया. ठीक है. Start by settling into a comfortable position and allow your eyes to close or keep them open with a softened gaze. Begin by taking several long, deep breaths, breathing in fully and exhaling fully. Breathe in through your nose and out through your nose or mouth. Allow your breath to find its own natural rhythm. Bring your full attention to noticing each in-breath as it enters your nostrils, travels down to your lungs, and causes your belly to expand. And notice each out-breath as your belly contracts and air moves up through the lungs, back up through the nostrils or mouth. Invite your full attention to flow with your breath. Notice how the inhale is different from the exhale. You may experience the air as cool as it enters your nose and as warm as you exhale. As you turn more deeply inward, begin to let go of noises around you. If you're distracted by sounds in the room, simply notice them and then bring your attention back to your breath. Simply breathe as you breathe, not striving to change anything about your breath. Don't try to control your breath in any way. Observe and accept your experience in this moment without judgment, paying attention to each inhale and exhale. If your mind wanders to thoughts, plans, or problems, simply notice your mind wandering. Watch the thought as it enters your awareness as neutrally as possible. Then practice letting go of the thought as if it were a leaf floating down a stream. In your mind, place each thought that arises on a leaf and watch as it floats out of sight down the stream. Then bring your attention back to your breath. Your breath is an anchor you can return to over and over again when you become distracted by thoughts. You might become distracted by pain or discomfort in the body, or twitching or itching sensations that draw your attention away from the breath. You may also notice feelings arising, perhaps sadness or happiness, frustration or contentment. Acknowledge whatever comes up, including thoughts or stories about your experience. Simply notice where your mind wanders without judging, without pushing it away, clinging to it, or wishing it were different.
and simply refocus your mind and guide your attention back to your breath. Breathe in and breathe out. Follow the air all the way in and all the way out. Mindfully be present moment by moment with your breath. If your mind wanders away from your breath, just notice without judging it, be it a thought, emotion, or sensation that hooks your attention, and gently guide your awareness back to your breath. As this practice comes to an end, slowly allow your attention to expand and notice your entire body, and then beyond your body to the room you're in. When you are ready, open your eyes and come back fully alert and awake. The breath is always with you as refocusing tool to bring you back to the present moment. Set your intention to use this practice throughout your day to help cultivate and strengthen attention. So whenever you feel you're ready, you can join us back. This type of mindfulness की जो practices हैं, these are just only there to bring you in the present moment. कोई share करना चाहेगा what was the thoughts and how was the feelings when you were doing the mindfulness? कुछ different observe किया, लगा कि कुछ relaxation हुई है या thoughts कहीं और इधर उधर गई? बहुत से लोग अभी उस फेज से वापस नहीं आए है ना, मुझे रिलैक्सेशन के उसमें है, which is really great because आपको 24 घंटे में कहाँ हमें टाइम मिलता है इस रिलैक्सेशन फेज में जाने का? दुनिया की थॉट, there are things you need to catch up with and everything ही चल रहा होता है लाइफ ਵਿੱਚ. Very random we get the chance to relax ourselves, to relax our body, to breathe nicely. अपने वाले तो ध्यान ही नहीं जाता ना, अपने तो भूल गए कि ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, body कितने साह जा रहा है, कितने नहीं आ रहा. But all the day we are so busy with, activities, day activities, catching up with the things, family, work, job, कुछ भी कर रहे हैं और. Okay, so I will keep it for the end. कोई भी अगर थोड़ा सा शेयर करना चाहता है तो जरूर शेयर करें. फोकस रह सके थोड़ा ब्रेथ पे या सोचें जा रही थी इधर उधर. मैं फॉर मी लाइक जो भी दिमाग में चल रहा था फॉर अ मोमेंट सब कुछ थम सा गया. इट वाज लाइक जैसे नदी का पानी है ना, कोई भी बस लहरें चल रही है. इट वाज वेरी काम एंड क्वाइट रिलैक्सिंग. इतना ज्यादा ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट पे आई वाज एक्चुअली फीलिंग माय ब्रेथ. तो वो मॉलिक्यूलर लेवल तक फील हो रहा था. इतना आई डोंट थिंक हम इतने लेवल तक कभी इन डिटेल ध्यान देते हैं. सो इट वाज वेरी रिलैक्सिंग एंड concentrating somewhere inside me. We concentrate on the outside things, so I think this time I concentrated the things inside me. So it was it's great experience. Thank you for sharing, Adita. This is so true. Really, bahar hi focus rehta hai. So you get a chance to explore what is happening inside and all the way when you follow your breath. माइंडफुलनेस की बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस आती हैं. माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉकिंग. मतलब जब हम लोगों ने इसकी खुद ट्रेनिंग करनी शुरू की तो वी वर लाइक वाकई हम जब खाना भी खाते हैं वी नेवर इवन एक्नॉलेज व्हाट इज द टेस्ट. हमें इतनी जल्दी जल्दी बस चलो खत्म हो गया. वी नेवर इवन हैव चांस के भाई ब्रीथ चल रहा है, अंदर कुछ है, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है.
ब्रेथ सारा. थैंक यू फॉर शेयरिंग. चलिए जी, डिमेंशिया पे आते हैं. डिमेंशिया इज अ जनरल टर्म, लॉस ऑफ मेमोरी, ये सबको ही पता है इसकी डेफिनेशन. समवन इज एडमिटिंग और आई कैन एडमिट. No, I did. ओके. एंड अदर मेंटल एबिलिटीज जो भी आपकी हैं, वो जब सिवियरली, जब इतना ज़्यादा मेमोरी लॉस हो जाए कि वो आपकी लाइफ में जो है ना वो इंटरफेरेंस होने लग जाए डेली लाइफ में, दिस विल बी काइंड ऑफ डिमेंशिया. क्योंकि डेली उस पर जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस यही आते हैं कि हम तो मेमोरी वैसे ही अच्छी नहीं है, हम अक्सर भूल जाते हैं, कोई चीज़ कहीं रखी भूल गए. तो उसमें भी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेंगे बात करते करते. लेकिन ये है कि जनरली जो है इसमें मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होता है और बहुत ज़्यादा होता है. डिमेंशिया किसी भी एज में हिट कर सकता है, इट डिपेंड्स. लेकिन मोस्टली जो है वो एक एज के बाद 50-55 के बाद जो है इसमें ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं डिमेंशिया के हिट होने के. तो किरण, I have a question. जो हम उर्दू में कहते हैं भूल जाने की बीमारी, वो है डिमेंशिया? जिसको हम उर्दू में कहते हैं भूल जाने की बीमारी, इस आप लोग अक्सर कहते हैं भूल जाने की बीमारी, लेकिन ये भूल जाने की बीमारी ये है कि एक एज के बाद आप ये कहते हैं ना कि भाई मम्मी से गल कर रहे हैं तो भूल जान दे रहे हैं, है ना. एक दफा 2 दफा भूल गए, कभी बात हो रही है, जैसे लेट से आज बात हुई तो वो भूल गए कि अच्छा लास्ट वीक कहाँ गए थे, अच्छा आप लोग गए थे, मैं तो नहीं गई थी. लेकिन फिर उसके 2-3 घंटे बाद याद आ गया कि ओ अच्छा हम हाँ गए तो थे, हाँ. फिर उसके बच्चे फिर वही बात करने लग गए ना. तो दिस इज नॉट डिमेंशिया. लेकिन भूल जाने की बीमारी मीन्स कि जब आप बिल्कुल उसको जब याद करो और फिर याद ही ना कर पाओ. Okay. अगर इसको आप जो है वो, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड सी टर्म है ना, हम हर जगह पे यूज कर लेते हैं. ठीक है. हाँ, और यूजुअली ये कि ये मतलब इग्नोर हो रही है, हमारे कल्चर में जरूर इग्नोर हो रही है. अगर आप कह रहे हो ना कि भूल जाने की बीमारी, और अगर उसको फैमिली मेंबर्स ये सोच रहे हैं या खुद जिसको है और वो ये सोचा कि चलो कोई नहीं मैं टाइम गुजार लेता हूँ, लेकिन अभी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो आप देखोगे जब इंफॉर्मेशन में कि नहीं, वो भूलने की बीमारी कितना इफेक्ट कर रही है लाइफ पे. ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है. और जब तक आप वो डॉक्टर को दिखा के नहीं पूछते कि हाँ भाई ये भूलने की मुझे बीमारी हो रही है, मैं भूल जाता हूँ, चीज कहाँ रखी भूल गए, है ना, क्या पिछले वीक क्या हुआ था मैं भूल गया, तो लेकिन उसके बाद आप डॉक्टर से मिलके पूछोगे अपने सिम्टम्स. लेकिन आज भी हम जो अभी ये सेशन करेंगे इसमें हम पूरे गो थ्रू करेंगे सिम्टम्स को, तो आपको एक जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बन जाएगी कि किस हद तक भूलने की. जैसे अक्सर कार की चाबी भूल जाती हूँ मैं, तो ये सिम्टम स्टार्ट हो गए हैं? हाँ, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है. कौन कौन कार की चाबी भूलता है? मैं तो बहुत भूलती हूँ. हम लोग सभी भूलते हैं. कार की चाबी भूल गए, ये याद नहीं आया कि कहाँ पे जो है वो लाइट ऑफ की थी या नहीं की थी, चूल्हा घर पे निकल गए बंद किया था कि नहीं किया था, है कि नहीं. अब इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि इसको ये आइडेंटिफाई किया जाए ना कि पता नहीं चल रहा कि हम भूल रहे हैं या क्या हो रहा है असल में. हो सकता है कि हम भूल ही नहीं रहे, क्योंकि हमने क्या किया कि हमने तो अपनी मेमोरी में उसको स्टोर ही नहीं किया. हमें तो याद ही नहीं कि हमने चाबी कहाँ रखी, जहां भी आए फेंक दी उधर, और फिर उसके बाद पता नहीं कि कहाँ है. जब आपने ब्रेन का यूज नहीं किया बीच में और मेमोरी में स्टोर नहीं किया कि हाँ मैं चाबी यहाँ रख रही हूँ, तो फिर वो भूलना नहीं हुआ ना. ओके. है ना, थोड़ा सा हुआ ना, क्लिक की ना बात. क्योंकि वो चीजें हम भूल जाते हैं जिनमें हम ब्रेन को यूज ही नहीं करें, और हम जल्दी में और लापरवाही में, फोकस भी नहीं है, कंसंट्रेशन भी नहीं है, अपना एक के बाद एक काम करें और फिर पता नहीं चीज कहीं बीच में रख दी, तो ब्रेन को तो स्टोर नहीं की वो इंफॉर्मेशन ब्रेन की मेमोरी में कि हाँ भाई यहाँ रख रही हूँ. तो अगर आपने स्टोर ही नहीं की तो वो रिट्रीव कैसे होगी. तो ये जो डेली कंडीशन हमारी होती है ना कि चाबी कहाँ रख दी, ग्लासेस कहाँ रख दी, पर्स कहाँ छोड़ा, तो इसलिए क्योंकि वो ब्रेन में हम स्टोर ही नहीं उसको करते. तो ये थोड़ा सा इसमें ये डिमेंशिया के उसमें भी ये आता है कि हम इस चीज पे थोड़ा फोकस करना शुरू कर दें वापस. कई दफा हम कहते हैं कि हाँ भाई अच्छा उससे मिले थे, उसका नाम नहीं याद रहा, या वही बात है कि खिड़की बंद की थी, क्या बंद किया, क्या चलाया. तो अगर हम उसको ब्रेन की मेमोरी में स्टोर नहीं कर रहे और बस जल्दी से करते चले गए हैं, तो फिर उसमें ब्रेन का फॉल्ट नहीं है.
और बाद में अब आप रिट्रीव ब्रेन से करना चाह रहे हो इंफॉर्मेशन, पहले तो उसको उधर डाला ही नहीं है मेमोरी में। तो अगर 1 सेकंड रुक के देख लेंगे कि चाबी यहाँ रख रही हूँ और ब्रेन को इन्वॉल्व कर लेंगे फोकस से कि हाँ भाई यहाँ रखिए चाबी, तो कभी भी नहीं भूलेगा। Do you agree with me? Yeah, 100%. I have one question, Kiran. जी जी। अल्जाइमर और डिमेंशिया में क्या फर्क है? वो उसमें भी तो भूल जाते हैं ना, तो इन दोनों में कोई क्या मेन हाँ, हम चलते हैं आगे, मैं आपको दिखाती हूँ दोनों का। बिल्कुल, और बिल्कुल वो बल्कि भूलने की बीमारी बन जाती है अल्जाइमर जो है ना, उसके लिए ज़्यादा ट्रू है ये जो उर्दू का तर्जुमा हमारा। तो अभी इस टाइम पे ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको स्क्रीन, ये जो है ओंटारियो की थोड़ी सी ये फिगर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। आई वॉज नॉट इवन अवेयर माई सेल्फ, जब मैंने इन फिगर्स को देखा तो आई वॉज सरप्राइज टू कि 40 to 65 एज में 6.5% डिमेंशिया मीन्स के 40, अगर 100 लोग आपके पास खड़े हैं तो 6 लोगों को डिमेंशिया डायग्नोस हो चुका है। 66 to 74 की एज में 12% पे है, 75 to 85 की एज में 39%। और परसेंट जब मैं कहती हूँ तो आई एम श्योर यू आर गेटिंग दैट, ओके, आउट ऑफ 100 अगर एक रूम में 100 पीपल हैं 75 से 84 की एज के, तो उसमें से अराउंड 39 जो हैं वो डायग्नोस हो चुके हैं डिमेंशिया की किसी भी टाइप से। तो काफ़ी ज़्यादा ओंटारियो के अलार्मिंग फिगर्स हैं। 85 अबव पे 41 है और फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में उसकी निस्बत कम है। राइट साइड पे जो ग्रीन है ना बार्स, ये फीमेल और मेल के। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया कि डिमेंशिया और अल्जाइमर में क्या फ़र्क है। असल में डिमेंशिया जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, जैसे हम कहते हैं ना हार्ट डिजीज़, तो हार्ट डिजीज़ कोई भी हो सकती है उसमें से। तो डिमेंशिया, अगर ब्रेन की कंडीशन अच्छी नहीं है तो ब्रेन के लिए डिमेंशिया का वर्ड यूज़ होगा। अब उसमें से डिमेंशिया किसी भी एक वजह से हो सकता है, अल्जाइमर की वजह से हो सकता है, वेस्कुलर डिमेंशिया बहुत कॉमन है, और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। मैं बता रही हूँ ना कि 80 to 100 टाइप्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप और जो कि स्पेशली सीनियर से रिलेटेड है वो अल्जाइमर्स है। तो अल्जाइमर्स की वजह से डिमेंशिया हुआ। और डिमेंशिया जैसे मैं बता रही हूँ कि बड़ी टर्म है, जैसे आप कह लो कि हार्ट डिजीज है इसको। अब जब कोई भी आपको कहेगा हार्ट डिजीज है तो आप पूछोगे ना उससे कि क्या क्या मसला है हार्ट को, फर्दर वो आपको डिटेल देगा। तो अगर कोई डिमेंशिया खाली बोलता है तो उसका कारण अल्जाइमर भी हो सकता है और भी हो सकते हैं, जिसमें से 100 कारण हो सकते हैं। थोड़ा सा हो गया क्लियर? ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया है ना? पूछ रहे थे आप कि डिमेंशिया और अल्जाइमर में क्या फ़र्क है। तो ये फ़र्क है कि डिमेंशिया जनरल टर्म है और वो किसी भी वजह से हो सकता है। डिमेंशिया अल्जाइमर की वजह से हो सकता है, ल्यूई बॉडी टाइप है, वेस्कुलर टाइप है, फ्रंटोटेम्पोरल है, इसमें और भी बहुत सारी, पार्किंसन, मैं बता रही हूँ 100 किस्में हैं। तो 100 वजूहात हो सकती हैं डिमेंशिया होने की, और डिमेंशिया में होता क्या है उसको हम ज़्यादा करीब से देखेंगे ताकि ये पता चले कि ब्रेन की वो जो ये कंडीशन हो रही है उसको हम कैसे रोकें। लेकिन अल्जाइमर को हम बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। अल्जाइमर क्योंकि 80% जो है वो वजह डिमेंशिया होने की अल्जाइमर है, तो इसको हम डेफिनेटली ज़्यादा क्लोजली देखेंगे। जो मैंने आपके लिए शीट गिव अवे की प्रिपेयर की है फूड की, वो भी अल्जाइमर से रिलेटेड ही है कि क्या क्या हेल्दी फूड्स आप खा सकते हैं अपने आप को मेमोरी लॉस से बचाने के लिए। तो अल्जाइमर को अगर हम जनरली देखें तो इसका जो दूसरी टर्म इसको रिप्लेस कर सकती है वो मेमोरी लॉस है। मेमोरी लॉस कि आपको चीज़ें जो हैं वो भूलती हैं। तो मेमोरी लॉस में यही आ जाता है आपका कि जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे कि चाबी रखी और जनाब भूल गए कि चाबी कहाँ रखी है, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसमें एक तो ये है ना कि जिस तरह मैं अपॉइंटमेंट भूल गई डॉक्टर की कि मैंने कब बनाई थी, लेकिन फिर बाद में मुझे जो है वो याद आ गया, या मैंने लिखी नहीं थी कहीं या दिमाग में सोची नहीं। जिस तरह अभी हमने चाबी की बात की कि मैंने मेमोरी बॉक्स में तो उसको डाला ही नहीं और फिर मैं अपनी मेमोरी को ब्लेम कर रही हूँ कि ओह मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। तो जब भी आप मेमोरी बॉक्स में कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो तो वो तब स्टोर होती है जब हम फोकस और कंसंट्रेशन से उसका ध्यान से जो है उसको देखते हैं और अपने ब्रेन में इसको एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ ये चीज़ मैंने यहाँ रखी है। इतना बस 2 मिनट रुक के ही अपने आप को बताना बस, तो वो मेमोरी में चली जाती है आपकी। लेकिन अगर आपने चलते फिरते से कर लिया काम तो फिर मुश्किल है। अब जिसमें डायमेंशिया में जो है वो इतना मेमोरी लॉस है
कि वो फिर उनको जो है वो डिवाइसेस देनी पड़ती हैं, लाजमी उनको रिमाइंडर के नोट्स जो हैं वो बनाने पड़ते हैं जिनके पास ये हो जाए, क्योंकि अगर आप अपने आप को याद कराएं, जिस तरह आप सारे ग्रुप वालों को पता है कि वेडनेसडे को 4 to 6 आपका प्रोग्राम है, अब ये आपको पता चल चुका है तो आपकी मेमोरी में भी स्टोर है ये, और आप भूलते नहीं है हमेशा जब वेडनेसडे, हाँ कभी ये हुआ कि वेडनेसडे का ध्यान नहीं रहा तो ओ अच्छा, लेकिन एक दफा होगा, कितनी दफा, 2 दफा, लेकिन डिमेंशिया की कंडीशन वाला जो पर्सन है वो हमेशा ही उसको, मतलब इतना नहीं सिर्फ वो भूलते कि डेट्स भूल जाएंगे, अपॉइंटमेंट भूल जाएंगे, वो ये होता है कि वो दिन भूल जाते हैं, उनको पता नहीं कि आज वेडनेसडे है या ट्यूसडे है, और ये सीक्वेंस भी भूल जाते हैं कि ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आना है। तो ऑल दीज थिंग्स जो है मतलब बहुत ही डिफरेंट है, अगर आप उसको कंपेयर करो ना तो एकदम से क्लियर होती जाएंगी आपको चीजें, जैसे जैसे आप सुनोगे। प्लानिंग के चैलेंजेस हो जाते हैं, जिस तरह कोई रेसिपी आप फॉलो कर रहे हो, या फिर इवन जब हमने बिल देने होते हैं महीने के, तो हम अपने बिल दे देते हैं लेकिन उसमें ट्रैक नहीं कर पाते वो कि इस महीने का बिल दे दिया कि नहीं, याद करेंगे तो याद नहीं होगा। और मैं इस पे पूरी आपको थोड़ी सी डिटेल में जाऊंगी कि क्यों हो जाता है। डिफिकल्टी कंप्लीटिंग फेमिलियर टास्क, जिस तरह मतलब बहुत ही सिंपल कि टीवी का रिमोट कैसे इस्तेमाल करना है, माइक्रोवेव को टर्न ऑन ऑफ कहाँ से करना है, घर के स्विच लाइट्स जो हैं वो किधर हैं, बहुत ही फेमिलियर चीजें कि जैसे इस दरवाजे से अंदर जाना था या बाहर आना है, कमरे को कौन सा दरवाजा जा रहा है, वॉशरूम इस तरफ है या दूसरी तरफ है, इसमें कंफ्यूजन विद टाइम एंड प्लेस में ये आ जाएगा। और ट्रबल अंडरस्टैंडिंग विजुअल इमेज, अच्छा इसमें क्या होता है कि थोड़ा, क्योंकि ब्रेन ये सोचना ज़रूरी है कि जब डिमेंशिया है तो इसमें ब्रेन में चेंजेस आती हैं, तो क्योंकि ब्रेन में चेंजेस आती हैं तो उनको जो इमेजरी है ना उसमें भी प्रॉब्लम आती है। लेट्स से कि अगर फुट मैट पड़ा है एंट्रेंस डोर पे, तो फुट मैट उनको लगेगा कि शायद कोई बहुत नीचे कुआं सा है, कुछ जगह खुदी हुई है, तो ये आपकी विजुअल इमेजरी की प्रॉब्लम हो जाएगी ब्रेन में। तो वो कई दफा फुट मैट के ऊपर से बिल्कुल फलांग के जाएंगे इस तरह की चीज से, बिल्कुल उसको क्रॉस करते हुए, और कई दफा बिल्कुल रिफ्यूज ही कर देते हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है कि हम अंदर गिर जाएंगे, इसमें ये कुछ चीज गहरी है। और कई दफा ये चीजें बहुत प्रॉब्लम करती हैं जिनको पास कंडीशन है, और हम लोग उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाते एज ए फैमिली मेंबर। हम कहते हैं कि क्या हो गया, चलें भाई चलें। तो मतलब आप सोचो कि एक पर्सन अगर इतना बड़ी खाई देख रहा है अपने सामने, आप उसको अगर मजबूर करोगे कि नहीं चलें तो उसकी क्या सहनी हालत होगी, वो हम और फिर उनको तकलीफ और अजियत देने वाली बात है ना। वर्ड्स और स्पीकिंग जो है ना उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि भूल जाती हैं, लफ्ज़ भूल गए, नाम भूल गए, बेटे का नाम बेटी का नाम, और फिर याद नहीं आ रहा, और फिर पूछेंगे एक दूसरे को, फिर थोड़ी देर उस वक्त जहन में रहेगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है डिमेंशिया में वो ये है कि क्योंकि इसकी स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और हर स्टेज के अकॉर्डिंगली चेंजेस होती रहती हैं ब्रेन में, जिसमें ब्रेन डैमेज होता है। तो ये है कि अगर शुरू स्टेजेस में हैं तो वो नोट्स के साथ जो है वो सहारे से चल जाते हैं। इवन लास्ट स्टेज में नाम नहीं अगर बच्ची का उनको याद आ रहा, लेकिन इमोशनल फीलिंग फुली रहती है डिमेंशिया में। ये इंटरेस्टिंग बात है कि इमोशनल पार्ट जिससे ब्रेन डील कर रहा होता है वो डेड नहीं होता पार्ट डिमेंशिया में कभी भी। तो उनके पास उनका केयर गिवर, उनके पास उनका कोई बच्चा जो भी उसके साथ टाइम गुजारा है, उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट उनकी अच्छी रहेगी, वो बात करेंगे, खुश हैं तो खुशी की बात करेंगे। कभी ये होता है कि रीसेंट मेमोरीज लॉस ज़्यादा हो जाती हैं, बचपन में चले जाएंगे, पुरानी जो हैं वो यादें आने लग जाएंगी अपनी बचपन की, अपने पेरेंट्स की बात करेंगे। मिसप्लेसिंग थिंग्स और लूजिंग, ये वाली चीज़ जो हम बात कर रहे थे गाड़ी की चाबी, उनकी कंडीशन में ये होगा कि मतलब एक तो रख दी कहीं, याद नहीं आई, और फिर रखी भी कहाँ पे लूज करते हैं, जिस तरह ग्लासेस उतारी तो अब वो ढूंढते रहे, वो उसको फ्रिज में रख दी लेट से, अब वो फ्रिज में ढूंढ रहे में तो कोई ढूंढेगा ही नहीं, तो वो सारे घर में बेचारे ढूंढेंगे। आप सोचो कि कितना डिस्ट्रेस होता होगा कि पूरे घर में ढूंढे, फिर आखिरकार अगर फ्रिज खोला कोई चीज निकालने के लिए और ग्लासेस मिल गई फ्रिज से, तो निकाल लेंगे ग्लासेस को फिर, लेकिन ये याद नहीं आएगा कि ये क्या है, इसको क्या करना, मुझे इस्तेमाल कैसे करना है ग्लासेस को, ये क्यों है यहाँ पे। तो फिर वो और कंफ्यूजन वाली होती है इसमें मसला के अच्छा ये ग्लासेस हैं, फिर कोई अगर उनको याद कराए कि भाई हाँ अपने उस पर पहन लें, तो ये वाली तो बहुत आखिरी स्टेजेस पे, फोर्थ स्टेज पे जाके इस तरह के मसाइल
दरपेश हो सकते हैं। किरण, आई हैव वन क्वेश्चन। जी जी। कि अगर जैसे सपोज कोई है वो आज अपने बेटे का नाम भूल गया, यानी वो उसको पहचान नहीं रहा, और कुछ दिन के बाद फिर वो सिर्फ अपनी दामाद को पहचान रहा है और किसी को नहीं पहचान रहा, तो ये अल्जाइमर में आता है। बिल्कुल तो ये डिमेंशिया का ही, अल्जाइमर इज द क्या कहेंगे कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिमेंशिया? नहीं, अल्जाइमर जो है वो एक वजह है डिमेंशिया की। तो डॉक्टर जब डायग्नोसिस देगा तो वो डिमेंशिया का ही देगा, लेकिन वो आपको बताएगा कि इनको अल्जाइमर की वजह से हो रहा है डिमेंशिया। अच्छा, क्योंकि उसमें इमोशनल अटैचमेंट भी खत्म हो जाती है ना अल्जाइमर में? अल्जाइमर जो है उसमें आखिरी स्टेजेस में जाके इमोशनल अटैचमेंट भी खत्म हो जाती है, और अल्जाइमर जो है वो नॉन रिवर्सिबल भी, मतलब वो रिवर्स भी नहीं हो पाती, वो कंडीशन ऐसी है ब्रेन की। तो क्योंकि और यही सबसे ज्यादा जो है वो सीनियर्स में है, तो इसी के लिए हम आज बात करना चाह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और किस टाइम पे शुरू कर देना चाहिए क्या करना। एंड वन मोर क्वेश्चन, ये जो डिमेंशिया है ये किसी मेरा मतलब है कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और इसीलिए डिमेंशिया की जो मुख्तलिफ और इकसाम हैं, जिस तरह एक किस्म हम बता रहे हैं ना डिमेंशिया की अल्जाइमर है, ठीक है, तो इसीलिए जो अल्जाइमर है वो रिवर्सिबल नहीं होती कंडीशन, और इसमें धीरे धीरे डिजेनरेट ही होता जाता है ब्रेन। लेकिन जो बाकी इसकी 99 इकसाम आप समझो कह लो कि डिमेंशिया की हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाती है। और वो कब कब इम्प्रूवमेंट होती है कि अगर वो साइड इफेक्ट की वजह से है, कोई इन्फ्लेमेशन हो गई थी, कोई आपको चोट लग गई है ना, ब्रेन इंजरी हुई थी, विद टाइम रिकवरी हो गई है, तो जो डिफरेंट उस तरह की कंडीशंस होती हैं, इसकी वजह से जब डिमेंशिया हो तो वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इतना रिकवर हो जाता है कि वो मतलब डेली लाइफ जो है उसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। और अगर आपने जैसे कोई मेडिसिन खा रहे थे, उससे ये साइड इफेक्ट हुआ, आपकी मेडिसिन आपकी वो खत्म हो गई, आपने वो छोड़ दी, तो वो फिर रिवर्स हो जाएगा डिमेंशिया? मेरा मतलब है कि वो इट कैन बी इम्प्रूव्ड। हाँ, इट कैन बी इम्प्रूव, लेकिन बिल्कुल जल्दी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं उसको रूल आउट करना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इनकी जो मेडिकेशंस हैं वो बहुत अच्छी हैं। और इसमें ये है कि वो कहते हैं कि आप मतलब प्रॉपर, जिस तरह आप देखो शॉपर्स ड्रग मार्ट से जब इस तरह की सीनियर्स की मेडिसिन आती हैं, वो पूरे डेज के हिसाब से उन्होंने सैटरडे संडे मंडे सॉर्ट आउट की होती है, कोई उनको हेल्प करे। उनको बस कई दफ़ा ये होता है कि उनको डेज नहीं भी याद होते जो डिमेंशिया के हैं अपने सीनियर्स, लेकिन उनको ये पता चल जाता है कि हाँ भाई पहले दिन मैंने यहाँ संडे से स्टार्ट किया था, अब ये इधर से मुझे लेफ्ट टू राइट जाना है, ये वाली ख़त्म हो गया डब्बी खाना, तो मुझे नेक्स्ट में चले जाना है। तो ये चीज़ें वो लर्न कर सकते हैं, जो भी उनका केयर गिवर है उनको आराम से बिठा के बता सकता है, सिखा सकता है। और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह सीखते हैं, है ना। बताइए, और कोई क्वेश्चन आ रहे जहन में? मेरा एक क्वेश्चन, कई बार ऐसे होता है कि कोई हमें मिलता है तो हमें याद आता है मैंने इसको देखा हुआ है, और उसकी कई बातें याद आती हैं पर नाम नहीं याद आता, कहाँ देखा हुआ, क्यों देखा हुआ, और कई इंसिडेंट्स उसके साथ जो रहे होते सारे याद आते हैं, पर ये नहीं याद आता ये है कौन। हाँ, तो फिर इसमें इसको क्या बोलेंगे, अल्जाइमर या डिमेंशिया? हाँ, अब ये देखिए कि आपको क्या हुआ, कि जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे चाबी रखने की, कि हो सकता है कि आपने इसकी 3-4 वजूहात हो सकती हैं। तो पहली बात है कि आपने नाम उसका पहले भी जब पूछा था तो आपने बहुत तवज्जो से नहीं उसको मेमोरी में सेव किया, आपने याद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको पता है भाई हाँ कहीं मिली मुझे बस में, या कहीं और मिली, या किसी के घर मिली, तो ठीक है मिल गई, बस उनका नाम आपने तवज्जो नहीं दी और वो आपने याद करने की कोशिश नहीं की, ये हो सकता है। और क्योंकि आपको चेहरा भी याद आ रहा है और बाकी सब कुछ याद आ रहा है, तो इसका मतलब है वो चीज आपने मेमोरी में रखी थी। अब इसका क्या होता है कि अगर मैं आपको यहाँ से जल्दी से निकाल के अगली जगह लेके जाऊं स्लाइड पे, तो आपको मैं बताती हूँ कि होता क्या है मेमोरी में। 1 मिनट और इसी क्वेश्चन में, अब ये मेरे ब्लिस्टर पैक आता है मेडिसिन का, इसमें संडे मंडे इवनिंग मॉर्निंग सब लिखा हुआ है, इवन देन आई फॉरगेट, मैं ये दोपहर वाली डोज हमेशा भूल जाती हूँ और बाकी खत्म हो जाती है, तो दोपहर वाली अलग पड़ी रहती है वैसे कि मैं। अच्छा, तो वो दोपहर वाली डोज जो है वो अलहदा से बॉक्स में डली हुई है या क्या हुआ हुआ है उसके साथ? ये मॉर्निंग फिर सेंटर वाली, मतलब इवनिंग एंड दिस नाइट, आई ऑलवेज फॉरगेट दिस इज द इवनिंग वाली,
और ये खत्म हो जाता है मेरा। एक मॉर्निंग और इवनिंग आप कह रही हैं खत्म हो जाती है, आफ्टरनून की पड़ी रह जाती है, ये कह रही है ना? ये भरा पड़ा और ये खत्म हो गया। हाँ, तो आपका इसका मतलब है कि आफ्टरनून की दवाई आप लेना ही भूल जाती हैं। आप जब खाना खाती हैं तो उसके बाद आपको याद ही नहीं होती, तो आप खाने के फौरन बाद क्या कर रही होती हैं? आफ्टरनून में कौन खाना देता है? फौरन बाद नहीं ना खानी, वो 4 बजे के बाद खानी, 4 से 6 के बीच। तो उस टाइम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। अगर वो कहें कि दोपहर को खा लो खाने के साथ, तब तो मैं खा सकती हूँ, पर ये अब एक हल इसका ये है, तरीका है कि आप अलार्म लगा लें 4 बजे। यही मैं कहने लगी थी। क्योंकि पता ये बहुत जरूरी है, ये अलार्म, ये इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस घर पे मिलते हैं और चीजों के लिए, लेकिन आपका तो सिर्फ एक दोपहर की दवाई का है। उसको आराम से उस टाइम पे अलार्म, जब जैसे अलार्म बजा बस अपनी उठ के सिर्फ दवाई लेनी है और कुछ भी नहीं, और वो याद रखनी कि ये अलार्म उसके दवाई। पास आती हूँ, टच भी करती हूँ, फिर चली जाती हूँ, फिर ये पूरा पैकेट एक पूरा बच गया। हाँ दूसरे में दूसरा हाँ, तो वो अच्छा नहीं है बिल्कुल। किसी को घर पे कहें कि है आपके पास मोबाइल, अभी हम आपको खत्म होते सेशन बता देते हैं, अलार्म लगा लेती है ना आप? हाँ, ये तो लगा लेते हैं। तो बिल्कुल अभी लगा लें। ओके, बिल्कुल, जो जो कल करना है वो आज करें। ठीक है, बिल्कुल अलार्म लगा लें। और हम बताइएगा जरूर उस्मा को फिर कि कैसा रहा आपका, क्योंकि ये दवाई तो मिस नहीं होनी चाहिए ना जी। मैं हैरान हो गई हूँ, मेरा पूरा एक पैकेट गलत हो गया, एक गलत वीक हो नहीं, गया। मिस हो, कभी आज होगी, कभी कल होगी, कभी क्या। हाँ, नहीं नहीं, फैमिली डॉक्टर को बता दीजिएगा। अच्छा, ये जो आप राइट साइड पे फोटो देख रहे हैं ना, ये ब्रेन सेल के न्यूरॉन की है। एक न्यूरॉन आपको नजर आ रहा है, ये जो जिस तरह ऐसे जड़ें सी निकली हुई हैं ऊपर और इस तरह करके ना, ये सेल बॉडी एक्सॉन, उसके साइनेप्स हैं इस तरफ। तो इस तरह के मतलब ये न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं उनका कंसेंसस है कि इस तरह के हमारे ब्रेन के अंदर 100 बिलियन जो है ना वो न्यूरॉन्स हैं। बिलियन में पता 9 जीरोस होते हैं, इमेजिन कितने ज्यादा न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा होता है कि ये जो सारी जो हम बात करें ना कि मेमोरी कहाँ जाके स्टोर होती है, कहाँ से मिलती है, क्या होता है जब हम बात करते हैं, ये जो उन्होंने छोटी सी यहाँ पे चीज दिखाई हुई है हमें, अगर आप मेरा कर्सर देख सकते हो, रेड वाली नहीं रेड वाली नहीं, ये देखिए, ये जो जिस तरह समझें कि ये यहाँ पे रूट्स है ना, एक जगह पे रूट्स खत्म हो रही हैं, दूसरे वाले की रूट्स यहाँ पे आ रही हैं नजर, जहाँ सर्कल बना हुआ है उसके अंदर। तो ये जो रूट्स हैं वो एक न्यूरॉन की दूसरे न्यूरॉन से जहां पे मिल रही होती है ना, इधर बीच में जो हिस्सा है ना, ये लेफ्ट साइड पे आपको दिखाया है, इसको साइनेप्स कहते हैं। इस जगह पे सारी इंफॉर्मेशन जो है ना आपकी आ जा रही होती है, जो कि मेमोरी में शेयर होती है, आप रिट्रीव करते हो। लेट्स से कि ये अगर 100 बिलियन मेरे पास न्यूरॉन है, तो एक न्यूरॉन जो है वो 15,000 कनेक्शन बना सकता है। कैन यू बिलीव इट? ईच कनेक्शन पे एक आपकी मेमोरी स्टोर हो सकती है, एक इंफॉर्मेशन। अब अगर जिस तरह आप बात कर रहे हो ना कि उसका नाम नहीं आपको याद आ रहा, तो आपने एक दफा उसका नाम याद किया ना, अगर आप 5-6 दफा या महीना या 2 महीना उसको मिलते रहते, रोज नाम याद करते, तो वो हर कनेक्शन में, मतलब एक से ज्यादा कनेक्शन में उसका नाम सेव हो जाता है जिसका नाम आपको भूल रहा है। फिर वो अगर विद टाइम, क्योंकि अल्जाइमर में क्या होता है, विद टाइम ये कनेक्शंस जो हैं ये डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। इन कनेक्शंस के बीच में ये जो आपको लेफ्ट वाली फोटो में वाइट वाइट डॉट्स डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, ये प्लाक की कंडीशन में प्रोटीन में चेंज होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो साफ सफाई नहीं रहती, जैसे समझो, तो वो वहाँ पे उसको ब्लॉक कर देते हैं। जब उसको ब्लॉक करने लगते हैं तो न्यूरॉन आपका वो डेड होने लग जाता है। लेकिन इसके अलावा आपके पास 100 बिलियन न्यूरॉन्स के, ईच न्यूरॉन के पास 15,000 कनेक्शन बनाने की कैपेबिलिटी है। तो आप ये कहते हैं वो कि आप जितने ज्यादा न्यूरॉन की सिनेप्सिस को यूज कर सकते हो आप करो, मतलब ये कि जब आप कोई बात कर रहे हैं तो आप उसको स्टोर करें सही से अपनी मेमोरी में। अगर वही नाम आप जब आपने किसी का सुना है आज जाके, तो घर आके एक दफा याद करोगे, अच्छा हाँ वो 2 लेडीज मिली थी, ये नाम था, ठीक है, दवाई लेनी है, हाँ अलार्म किरण ने बताया। तो वो 2-3 दफा जब आप ज्यादा दफा उस चीज को अपने दिल में दोहराते हैं, याद करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से स्टोर होती है और डिफरेंट सिनेप्सिस जो हैं उनके कनेक्शंस बनते हैं। तो जितना आप उनको यूज करेंगे साइनेप्सिस को, आपके ब्रेन डैमेज के चांस जो हैं, जब भी होंगे भी, अगर विद एज कुछ होता भी है, तो क्या होगा कि अगर लेट्स से कि 100,000 सिनेप्सिस डेड हो गए, तो फिर भी उसके पीछे आपके पास बैकअप तो है ना, कितना 100 बिलियन का बैकअप है।
और 100 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 15,000 का बैकअप है। तो वो ये कहते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि इन्होंने 20 इयर्स लॉन्ग रिसर्चेस भी की हैं नन्स पे, वो कहते हैं कि अगर काफ़ी सारा ब्रेन का हिस्सा डेड भी था तो फिर भी उनको कभी भी मेमोरी लॉस नहीं हुआ था ये, और बिल्कुल ठीक रहे उनके ब्रेन। क्या वजह से उनको मेमोरी लॉस या अल्जाइमर या डिमेंशिया की प्रॉब्लम नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड किए हुए थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक एज के बाद भी याद करते रहे। जिस तरह हम लोग अब क्या करते हैं, सेल फोन में नंबर है, अपने बच्चे का नंबर याद नहीं है, अपना नंबर याद नहीं है। मैंने देखा है कई दफा लेडीज जो है वो निकाल के कर रही होती हैं। तो वो हमारी जो ब्रेन हेल्थ है वो हमारे पेरेंट्स से बहुत पीछे रह चुकी है। अगर पिछली जनरेशन को आप याद करो तो उनको सब पता होता था। हमने अपने ब्रेन को यूज ही नहीं हम कर रहे। हमें चाबी लाके हमने एक जगह रखी हुई है, इधर ही रखनी है बस, ठीक है, आदत बनी हुई है। ये चीज उधर है, ये इधर है, ये मोबाइल पे नंबर सेफ है, ठीक है, एड्रेस सेफ है, ठीक है, बाहर निकले जीपीएस का यूज कर लिया, चलो। हम कब ब्रेन को यूज करें? हम ब्रेन को यूज करें, उसके साइनेप्सिस को सही से यूज करें, सही कनेक्शन बनाएं, हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन ज्यादा स्टोर होगी तो कुछ भी हिस्से डेड होंगे। हमारे पास न्यूरोप्लास्टिसिटी है, हम थोड़ा और बात करेंगे उसमें, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर जो है इसमें जाहिर बात है एज है, जैसे हमने कहा है। फैमिली हिस्ट्री का मतलब होता है कि अगर आपके पास जीन है तो इसमें एक जीन होती है APOE4 जो उस जीन से रिलेटेड है डिमेंशिया, कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में वो जीन है तो चांसेस हैं आपको हो सके। लेकिन फिर भी जितनी रिसर्चेज हुई हैं उन्होंने ये प्रूफ किया है काफ़ी रिसर्चेज ने कि इवन पीपल के पास जिनके पास वो जीन थी उनको नहीं हुआ डिमेंशिया। तो फिर और रिसर्चेज हुई कि भाई क्या वजह है कि क्यों नहीं हुआ, वो क्या करते थे। डाउन सिंड्रोम एक और दूसरी जो है वो बीमारी है जिसकी वजह से डिमेंशिया के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अब आप देखो सिर्फ 3 रिस्क फैक्टर ऐसे थे जो कि चेंज नहीं कर सकते। वी हैव सो मेनी रिस्क फैक्टर्स जिनको हम चेंज कर सकते हैं। अनहेल्दी डाइट जो हम करते हैं वी कैन ऑलवेज चेंज। लैक ऑफ एक्सरसाइज वी कैन चेंज। जो अल्कोहल यूज है अगर है उसको चेंज कर सकते हैं। अपनी कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखें, बीपी का ख्याल रखें, ओबेसिटी ना होने दें। वाइटामिन जो हैं वो लेते रहें। आपके जो ये हो जाती हैं वाइटामिन की डिफिशिएंसी, वो डॉक्टर से रेगुलर ब्लड टेस्ट होने चाहिए। वाइटामिन डिफिशिएंसी में स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम सरप्राइज कि विटामिन डी हमारे पास ओहिप कवर्ड नहीं है। अगर आपके डॉक्टर्स रेगुलरली एवरी ईयर ब्लड टेस्ट लिख के देते हैं तो मेक श्योर कि विटामिन डी वो नहीं लिख के देंगे और वो कवर्ड नहीं होता। क्योंकि इसके अलावा डिप्रेशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, स्लीप आप अपनी बेटर बना सकते हैं। हेड इंजरी को ख्याल करें कि ना हो, और हियरिंग लॉस और सोशल आइसोलेशन। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को स्टॉप शेयरिंग करके हियरिंग लॉस और सोशल आइसोलेशन पे बात करना चाहती हूँ। ये बताइए कि क्या ये रिसर्च ये कहती है कि जो सोशल आइसोलेशन है, असल में जब हियरिंग लॉस होता है ना हमारे पास सीनियर्स में, तो क्या होता है कि जो आले होते हैं हियरिंग के लिए वो पसंद नहीं आते मोस्टली, और या फिर वो सेट नहीं हो पाते और शोर आता है कान में। तो उसकी वजह से यूजुअली लोग जो है वो लेना पसंद नहीं करते, और जब वो लगाते हैं तो वो सेट नहीं होते, और फिर जब वो नहीं सेट होते तो क्या होती है, सोशल आइसोलेशन। कि अच्छा मुझे जब सुनाई नहीं देता, मैं जाता हूँ बाहर या जाती हूँ, ऊंचा नहीं मुझे पड़ता, क्या करूं, तो बेहतर है कि घर पे ही रहूं, ना जाऊं बाहर। और ये प्रॉब्लम अपनों में बहुत है। तो इसको हम एड्रेस कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। डॉक्टर से मिलके बार बार अपॉइंटमेंट 2-3 बनाएं और उसको सेट करवा लें बस। क्योंकि एक दफा सेट हो गया तो फिर आप आराम से बाहर निकल के जा सकते हैं। वरना तो अगर अपने आप को आइसोलेट करेंगे, कोई सोशल आइसोलेशन मतलब घर पे अलोन बैठना जो है ना, वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इस टाइम पे रिसर्चेस बता रही हैं डिमेंशिया का है। क्योंकि आप किसी से मिल ही नहीं रहे, आपके नए साइनेप्सिस नहीं बन रहे, नए कनेक्शन नहीं हो रहे ब्रेन में, आप कोई नई चीज बात नहीं कर रहे, तो आप अकेले बैठे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो पुराने वाले तो एज के साथ डैमेज होने हैं ना, तो वो डैमेज हो गए और आपने नए बिल्ड नहीं किए। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं कि कहते हैं ना कि आपकी एज बढ़ती भी रहे, आपके पास बहुत ब्रेन होते हैं। ये एक उर्दू का बहुत वो है ना, तो किसी ने उस दिन मुझे कोई पूछा था कि भाई ये आप बताओ, साइकोलॉजी में हमने सुना कि 3 ब्रेन है ह्यूमन के पास। लेकिन ब्रेन एक ही है, ब्रेन 3 नहीं है, बट यू कंटिन्यूसली यू कैन डेवलप मोर कनेक्शंस, और आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है
स्टोर करने की चीजें यहाँ पे, है ना। हम लोग छोटे तो सुनते थे कि सिर्फ 2% ब्रेन यूज करते हैं ह्यूमन बीइंग, 4% आइंस्टाइन ने यूज किया था। जी उस्मा जी, एम आई करेक्ट? जी किरण, और ये बात जो है मुझे आज मैं इसको रिलेट कर रही हूँ कि अगर हम कम सुनते हैं उसकी वजह से हम पार्टिसिपेट नहीं करते, हम लोगों के पास नहीं जाते और उसकी वजह से आइसोलेशन है। तो आई एम सो ग्लैड कि हमारे पास इस वक्त जूम है जो सबको कनेक्ट कर रहा है। अगर आप में से किसी को लगता है कि मुझे कम सुनाई देता है तो प्लीज चेक कराएं, और यहाँ बहुत से अब ऐसे आले मिलते हैं जो इजीली आपके कान में फिट हो जाते हैं। और हमारी तो जनरेशन है वो ब्लूटूथ वाली, और वो तो अब तो कोई ऐसी बात ही नहीं। पहले एक जमाने में लगता था हाय लोग क्या कहेंगे कान में लगाया हुआ है, तो अब तो हम लोग और अब इतने छोटे छोटे हैं कि पता भी नहीं चलता। अगर आपको किसी भी स्टेज पे लगता है कि मुझे कम सुनाई देता है तो प्लीज डॉक्टर से चेक जरूर कराइए। थैंक यू किरण। हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसीलिए मैंने बिल्कुल बंद करके स्क्रीन में कहा ये बहुत जरूरी है। और आप सब अटेंड कर रहे हैं, आपको ही पता है कि आपके ही बहनें हैं, भाई हैं जो पहले आके फ्रेंड्स अटेंड करते थे, अभी कभी लग रहा है कि नहीं कर रहे या छुप रहे हैं या कम आ रहे हैं, तो प्लीज उनको जरूर कॉल करके और उनको प्लीज कनेक्ट करके पूछा करें, उनको मजबूर किया करें और बुलाया करें कि आए। क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा जो कारण अब बताया जा रहा है डिमेंशिया का वो यही है कि आप जितना सोशल आइसोलेशन आप बात नहीं करते। क्योंकि इवन हम देखें, हम टीवी देखते हैं तो ये यूज नहीं हो रहा होता, आपके कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहे होते, आप कुछ चीज देख रहे हो, पैसिव है ना। जब आप बात कर रहे हो, अगर अभी मैं आपसे जिस तरह बात कर रही हूँ आपको पता चले कि हाँ भाई किरण ने सबके जो है वो अनम्यूट करना है और 5 मिनट बाद किरण ने कहा कि मैं पूछूंगी ये बात, तो आप लोग जो इतना आराम से बैठे सुने, अब ज्यादा गौर से सुनोगे कि अच्छा क्या कह रही है किरण, मुझे सुनना है, मुझे समझना है, क्योंकि पूछेगी अभी, है कि नहीं। तो उस टाइम पे हम अपना एकदम से ब्रेन को पूरा फोकस में लेके आके और हम अच्छे से यूज करना शुरू कर देते हैं। बट डेली उसमें हम यूज नहीं कर रहे होते अपने ब्रेन को, बहुत कम हम यूज करते हैं। हम आराम से बैठे वही चीजें रिपीट करते रहते हैं, सुना अनसुना कर लिया और फिर बाद में कहते हैं कि क्या बात है इसकी हेल्थ क्यों कम हो रही है। ये तो ब्रेन तो एक मसल है ना, आप उसको यूज करोगे बिल्ड होगा। किरण यहाँ मुझे एक और क्वेश्चन है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि सोशल आइसोलेशन या उसकी वजह से हमारे ब्रेन सेल्स डैमेज हो रहे हैं, हाउ अबाउट मल्टीटास्किंग? मुझे तो लगता है उसकी वजह से तो मैं कुछ याद ही नहीं करती, वो शायद रजिस्टर ही नहीं हो रहा होता। एक जमाना था सोने से पहले मैं पूरा अपना डे विजुअलाइज करती थी, अच्छा ये जो है कल करना और ये आज हुआ है। अब वो रजिस्टर करने को शायद टाइम नहीं होता कि ये भी करना है वो भी करना है। तो क्या उससे भी ब्रेन सेल डैमेज हो रहे हैं हमारे मल्टीटास्किंग से? ब्रेन सेल मल्टीटास्किंग से इटसेल्फ डैमेज नहीं होते, बिकॉज मल्टीटास्किंग इज गुड, वी कैन हैंडल इट, वी आर रेजिलिएंट, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। बहुत हाई फंक्शनिंग चीज दी है ये हमें ऊपर वाले ने, तो इसलिए डैमेज होते हैं बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग मल्टीटास्किंग स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, बिकॉज वी आर सो स्ट्रेस के अगर ये चीज करनी है इसके बाद 10 और चीजें करनी है, वी विल फॉरगेट इट, ओ माय गॉश अगर ये भूल गई तो क्या होगा। और कई दफा आप देखो मल्टीटास्किंग करते हुए विद इन आपको ये लग रहा होता है कि ओ मैं कुछ भूल तो नहीं गई। तो आधा टाइम जो आप उस स्ट्रेस में होते हो ना, तो स्ट्रेस लेवल जो आप अपने हाई कर रहे हो, जो स्ट्रेस हार्मोन्स आप अपनी बॉडी में पोर कर रहे हैं, दीज आर नॉट गुड फॉर योर ब्रेन एट ऑल। वो आप बिल्कुल डैमेज करेंगे। जी किरण जी, मैं डॉक्टर जमशेद गुल बोल रहा हूँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी जी सर। जी, मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजिस्ट है, मैं बायोलॉजी का टीचर रहा हूँ अप टी कॉलेज एंड टिल यूनिवर्सिटी। तो आपने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है और मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे 2013 में हुआ था स्ट्रोक, और उसके बाद मेरी जो मेमोरी थी वो अफेक्ट हो गई। तो पहले मुझे रास्ते जो है ना वो ज़बानी याद होते थे, यहाँ से बैठ के मैं पाकिस्तान में रास्ता बता सकता था कि आप उधर जाएं उधर जाएं उधर जाएं। लेकिन उस स्ट्रोक के बाद इफेक्ट हुआ थोड़ा सा मेरी मेमोरी पे, और फिर मेरे ब्रेन में एक छोटा सा इन्फेक्शन हो गया था। वो मैं एक कंपनी में काम करता था, केमिकल मेरे वूंड में चला गया था, उससे ब्रेन में ट्रेवल हो गया, वो सब कुछ रिकवर हो गया सारा कुछ। लेकिन जैसे आपने बताया, आपने नर्व सेल का भी बताया था, अब जाहिर है एक बायोलॉजिस्ट
को क्या नहीं पता, न्यूरॉन का सब कुछ, ये मैं पढ़ता रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ये है, आपने कहा कि डिमेंशिया रिकवर हो जाता है, तो मुझे जो मेरा नॉलेज बताता है कि ब्रेन सेल अगर एक सवा डैमेज हो जाए तो वो रिकवर नहीं होता, और मेमोरी का एक सेंटर होता है जो हमारे इस लेफ्ट लोब में होता है, सेरेब्रल में होता है, तो वो अगर एक दफा डैमेज हो जाए, छोटा सा भी हो, तो वो रिवर्स नहीं होता। नंबर 1 आप क्या कहती हैं? नंबर 1। और नंबर 2, अब जो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो तो इंटैक्ट है, लेकिन मुझे अब रास्ते याद नहीं रहते। अगर मसलन मैं बताऊं कि मैं उस्मान जी के घर काफी दफा गया हूं ब्रैम्पटन में, लेकिन अब मुझे उनका रास्ता ज़बानी नहीं याद। आई एम डिपेंडेंट ऑन जीपीएस कि मैं जीपीएस दूं तो जाऊं, लेकिन अब मैं एक दफा चला जाता हूं तो फिर मुझे याद हो जाता है। ये इफेक्ट है। अब मैं याद रखने की कोशिश भी करता हूं, और मैं आपको बताऊं कि मैंने ग्रेजुएशन तक साइकोलॉजी पढ़ी है, और फिर मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी में मैंने माइक्रोबायोलॉजी और बायोलॉजी पढ़ी है। मैं होम्योपैथ स्पेशलिस्ट भी हूँ। तो आप मुझे दोनों बातें क्लियर करें कि एक तो ये कि ब्रेन सेल डैमेज हो जाए तो रिकवर कैसे होंगे, और दूसरी बात ये कि अगर आपको डिमेंशिया हो गया, मेमोरी लॉस हो गया, तो वो कैसे रिकवर हो? बिल्कुल ठीक है जी, आपका वैलिड क्वेश्चन है। जो आपकी डिमेंशिया की टाइप्स है ना, जो 100 एग्जाम है, उसमें से आपकी अल्जाइमर तो बिल्कुल भी नहीं रिकवर होनी, ठीक है। आपकी काफी सारी और जो टाइप्स हैं दूसरी, वो भी रिकवर नहीं होनी, लेकिन कुछ हैं जिसमें वो कहते हैं कि रिकवरी के चांसेस, लेकिन वही बात है कि वो इस तरह की रिकवरी नहीं होगी कि जैसे पहले आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि ब्रेन इतनी ऐसी चीज है, इतनी डेलिकेट चीज है कि उसमें एक दफा कहीं पे डैमेज हो गया तो वो हो गया, वो एरिया आपका रिकवर नहीं होगा। लेकिन वही बात है कि आप उन साइनेप्सिस को नहीं यूज कर पाते, वो डेड हो गए, आप नए क्रिएट कर पाते हैं, समहाउ आप जीपीएस यूज करके पहुंच जाते हैं। ये है कि आपको जीपीएस वो सेंस दे रहा है कि मुझे डायरेक्शंस कहाँ लेके जानी है। तो उसको बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहूंगी कि वो डीजेनरेशन जो है वो आपकी रिकवर हो गई है, लेकिन वो कुछ इस हद तक वापस हो गई है कि डेली लाइफ की जो वो एक स्ट्रगल थी वो खत्म होगी। लेकिन वो भी बहुत कम कुछ टाइप्स हैं डिमेंशिया की, ज्यादातर टाइप्स जो हैं उसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाते, और क्या होता है कि वो प्रोग्रेसिव ही होती हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि वो मैं इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैं पहले काम करता था तो मेरे कोलीग थे, वो मुझे कहते थे जीपीएस ऑन करो। मैं कहता था मेरा माइंड जो है जीपीएस है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैं ड्राइव करता था, मैं सीधा पहुंचता था डेस्टिनेशन पे। तो लेकिन अब मैं 27 में गया था पाकिस्तान, तो वहां पे मेरा एक दोस्त था, वो मुझे उसने कॉल किया एक दिन, वो कहता है जी कि मैं याद है आप मेरे साथ मोटरसाइकिल में बैठ के गए थे पैलियों में, खेत में। मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैं उससे क्या मैंने कहा हाँ यार मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, भूल गया थोड़ा थोड़ा। तो वो कहता है वो बैठ के थे, होंडा पे बैठ के गए थे, आप मेरे साथ थे, हम वहां पे जाके अपने उधर खाई थी, हमने मूलियाँ शूलियाँ खाई थी। तो अब इस किस्म की ये 27 की बात है, 17 की। तो अब मैं अब जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मैं अब जाता हूँ एक दफा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रास्ता लेफ्ट राइट राइट रॉन्ग, लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ याद करूँ, ताकि आइंदा मुझे वो दोबारा याद रहे। तो इससे मेरी रिकवरी तो हो रही है। तो दैट मीन कि आई एम यूजिंग न्यू सिनैप्सेस एंड न्यू न्यूरॉन्स टू एक्टिवेट माई मेमोरी। जैसे आपने बताया, मैं भी जानता हूँ कि हम बहुत परसेंटेज लो है हमारी ब्रेन को यूज करने की। तो अभी मैं थोड़े दिन पहले एक मूवी देख रहा था, स्ट्रेंज डॉक्टर, तो उसमें वो केमिकल है CPH4, वो एक्टिवेट कर देता है, आपका एंजाइम है बेसिकली। तो हमारी लाइफ चलती है एंजाइम पे, तो वो 79% में चलेगी, तो उसको तो सारी दुनिया उसके सामने खुल गई। तो ये रूहानी भी है, अगर रूहानियत हम कह लें इसको, तो अगर हम मेडिटेशन करें और मेडिटेशन से आप अपने ब्रेन को काबू कर लेते हैं, ठीक है। तो बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी एक्सप्लेनेशन बायोलॉजिकल भी थी, और क्योंकि ये माइंड से रिलेटेड थी, और मैं खुद चूंकि डॉक्टर हूँ, और जैसे आपने बताया कि खौफ तारी हो जाता है और आपको स्लीप एपनिया भी हो जाता है, तो मैंने अपना स्लीप एपनिया का भी टेस्ट कराया, वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो दैट मीन कि आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट मच, लेकिन फिर भी मेरी डिस्टेंट पास्ट की जो मेमोरी है वो इफेक्ट हो चुकी है, लेकिन याद आ जाता, मुझे वापस आ जाता है, मैं रिकॉल कर लेता हूँ, लेकिन फर्स्ट हैंड में नहीं आता। थैंक यू फॉर नहीं, तो
ये जो है किसी मेडिसिन का इफेक्ट हो सकता है या स्ट्रोक का इफेक्ट? स्ट्रोक का इफेक्ट है। स्ट्रोक का इफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो मैं ब्लड थिनर लेता हूँ, क्योंकि ब्लड थिनर मैं लेता हूँ, रेगुलर लेता हूँ, वो लाइफ लॉन्ग है मेरे लिए। तो डॉक्टर ने कहा जी आप लेंगे तो आप ठीक रहेंगे, नहीं लेंगे तो फिर देयर आर चांसेस कि आपको फिर दोबारा स्ट्रोक ना हो जाएगी। तो अभी तक तो मैं ठीक हूँ, अल्लाह करे ठीक हूँ। क्योंकि ये वेस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं, आपको डॉक्टर ने बताया। अच्छा, इसको वेस्कुलर डिमेंशिया कहेंगे जी। ठीक। सॉरी मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया है। नहीं, कुछ नहीं, मैंने बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया शेयर करने का, और इतने एक्सपीरियंस और इतने मेरे पास ऐसे यहाँ पे सब प्रेजेंटर्स बैठे हैं जिनको आपको खुद इतनी जानकारी, इतनी इंफॉर्मेशन है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। बिल्कुल ये है कि देखिए जैसे वही बात है जो आप बता रहे हैं कि अगर समझे कि ये मेरे साइनेप्सिस हैं और 5 साइनेप्सिस हैं मैं यूज कर रही हूँ, और मैंने आपने एक में जो है ना, एक में आपने मेरी इंफॉर्मेशन समझो, मेरा ही समझ लो कि आपने यहाँ पे ये जो थंब के साथ जो ये जोड़ा है, तो आपने मेरी इंफॉर्मेशन रख ली यहाँ पे कि भाई किरण है, और उस माने इसको बुलाया था, भाई ये आई थी हमारे पास मॉल्टन वुमेन काउंसिल के एक जूम में, ठीक है। अब अगर आपने दूसरा जगह पे मेरा और इन्फॉर्मेशन ले ली कि मैं आपको थोड़ा और बताती हूँ कि हाँ जी मैं तो साइकोलॉजी की, मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, मेरे पास मेरे 4 बच्चे हैं, मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ कि मुझे समोसे बहुत पसंद हैं, और जब हम जूम से निकल के फेस टू फेस मीटिंग्स करेंगे तो फिर समोसे मंगा के खाया करेंगे, है ना। पकौड़ों की भी बहुत शौकीन हूँ, और ये है कि मुझे ब्लू कलर पसंद है। अब देखो 5 सिनेप्सिस बन गया, आपको कहीं ना कहीं मेरे बारे में 5 चीजें पता चल गई। अब क्या है कि अगर एज गुजरने के बाद, अब से 20-25 साल बाद कहीं कहीं डिमेंशिया या कहीं ब्रेन डैमेज होता भी है, 2 जगह डैमेज हो जाए, उस्मा ने बुलाया था, किरण नाम था, हाँ नहीं भाई समोसे पसंद थे उस लड़की को, उसका नाम किरण था, कुछ तो याद रहेगा ना। तो इसलिए ये कहते हैं कि मतलब आप जितने अपने यूज कर रहे हैं सिनेप्सिस, उनको अच्छे से यूज करें, क्योंकि अच्छा दूसरी बात मजे की ये है कि ये बात नहीं, ये पक्की बात है कि हमारे ब्रेन में वैसे भी तोड़फोड़ होती रहती है, कुछ ना कुछ, मतलब एक एग्जैक्टली हाँ तो अलग चीज है कि डिमेंशिया या अल्जाइमर की या कोई और कंडीशन हो जाए, लेकिन डेली उस पे भी हमारे ब्रेन में थोड़ी बहुत तोड़फोड़ भी होती रहती है, और नए सिनेप्सिस भी हम बनाते रहते हैं। तो पुराना कनेक्शन बिल्कुल अगर आपका खत्म हो गया, एक कोई टूट गया, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ तो और होगा ना, मेरे पकौड़े समोसे याद रह जाएंगे है कि नहीं। कुछ भी पढ़ें, कुछ भी इंफॉर्मेशन लें। जी जी आप बताना चाह रहे हैं कुछ, प्लीज। मैं ये कह रहा था कि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन होती है हमारे ब्रेन में, हम तो उसका 2% में यूज नहीं करते। तो अगर हम ज्यादा करना शुरू कर दें तो फिर तो मेमोरी कहाँ से कहाँ चल जाती है। और मेरे पास एक किताब पढ़ी है, मैं उसको दोबारा पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, इफेक्टिव मेमोरी। इसी वजह से कि मेरी मेमोरी क्यों जो है ना वो कम हो रही है या इफेक्ट हुआ, यकीन ऑब्वियसली ये स्ट्रोक की वजह के बाद ही हुआ, तो उससे भी मुझे फर्क पड़ रहा है कि उसमें टिप्स दी हुए हैं कि कैसे कैसे आपने करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। थैंक यू वेरी मच, माय क्वेश्चन इज ओवर, थैंक यू वेरी मच फॉर द एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप यू आर वेलकम, और बिल्कुल हमारे साथ रहिए, आपको गोल हम सेट कर देते हैं मेमोरी और इम्प्रूव करने के लिए तो किरण जी एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी जरूर। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं पहले काफी रिलैक्सन लेती थी जब मैं पाकिस्तान में थी, तो यहाँ जब आई दोबारा से जो मेडिकल का मेरा सारे चेकअप्स हुए, तो उन्होंने कहा कि ये रिलैक्सन जो है ये आपको एडिक्शन हो गई है, उसको छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपका जितना लेट एज होती जाएगी तो आपकी मेमोरी लॉस होगी। तो क्या ये सही है? क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी तो मुझे लेनी पड़ती थी वो ऐसी, लेकिन यहाँ आप कुछ अरसे से छोड़ी हुई है मैंने, तो मतलब इससे होता है अगर कम एमजी की भी आप ले रिलैक्सन? आपको डॉक्टर ने क्या बताया है, दोबारा बताइए, अभी आपने मुझे बताया तो है। जी मुझे उन्होंने यही कहा था कि आप ये जो रिलैक्सन लेती हैं या स्लीप के लिए आप जो लेती हैं जो टैबलेट है, तो ये आप छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये एंड अप जो होता है इसका यही होता है कि मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक बताया। अच्छा, बिल्कुल ठीक बताया। और सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल चीज है ना हमारी मेमोरी लॉस में, वो स्लीप की प्रॉब्लम्स है। कैन यू बिलीव इट, जो हमारे 2 साइनेप्सिस के बीच में मैंने आपको बात बताई है ना कि जो प्लाक है, पीछे चले जाती है, वही वाली फोटो अगर आती है, तो जो प्लाक है 2 के बीच में,
जी मेरी स्क्रीन पीछे नहीं जा रही, तो मैं हाथ से बता देती हूँ कि जो दो के बीच में जो प्लाक बनता है ना हमारा, तो वो अगर अभी समझें कि अभी थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हुआ, जैसे मैं सोचती हूँ कि भाई अगर मुझे थोड़ी मेमोरी की प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी ये थोड़ी जो जब साइन अगर एक दो भी अपीयर हो या आपको लगता है कि भाई मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं रहता, तो जल्दी अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस पे ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वो इतनी जो एक दो छोटी छोटी चीजें अपीयर होने लगती हैं, वो कहते हैं कि उसके 15 साल बाद कहीं जाके आपका अल्जाइमर या डिमेंशिया बनता है। मतलब वो और ये भी हो सकता है कि हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते कि हो सकता है कि वो बहुत ही जल्दी कहीं पे साइन हो और उसको डॉक्टर को कब दिखाने की जरूरत है, अभी हम पूरी बात करते हैं। लेकिन जो आप बात करेंगे मेडिसिन और स्पेशली स्लीप मेडिसिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेमोरी के लिए जो है प्रॉब्लम कर सकती हैं। फौजिया जी शी विल सेकंड माय जो मैं आपको बात कर रही हूँ, और स्पेशली स्लीप की प्रॉब्लम जो है आपको, जो मैं वो बात ही कहना चाह रही थी कि जो आपके सिनैप्स के बीच में हम बात करें ना कि एक प्रोटीन सी आ जाती है जिसकी वजह से डिमेंशिया का प्रॉब्लम बनता है, कि वो बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है वो हिस्सा, तो वो जो प्रोटीन है एक नाइट की जो डेप्रीवेशन है ना, उससे उसके लेवल इतने क्रिटिकल हाई हो जाते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं। और रिसर्चर्स ये कहते हैं कि वो बहुत एक सिंपल एक सिर्फ नाइट की आपकी स्लीप अगर नहीं सही हुई तो उसके लेवल बहुत क्रिटिकल हाई जाते हैं एकदम से। तो आप ये सोचें कि जहाँ पे स्लीप प्रॉब्लम है, और जो काफ़ी अक्सर मैं सुनने में मुझे आती है सीनियर से कि भाई मेरी तो स्लीप इतनी कम हो गई है विद टाइम कि मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा तो पुत्र सो ही नहीं पानिया। मैंने कहा नहीं, ये चीज़ नहीं चलनी। स्लीप जो है एक हमारी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड होती है, बॉडी की भी जो आपकी चीज़ें वो भी आपको बता रही होती है, लेकिन उस अदर वे अराउंड मैं ये देखती हूँ अपनी थेरेपी सेशंस में जितना भी मैं काम कर रही हूँ स्लीप के अराउंड, आपकी स्लीप की एक हाइजीन और एक हैबिट होती है। अगर आप उस हैबिट को मेंटेन करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि स्लीप ठीक है। आपके मसल्स को रिलैक्स होना ज़रूरी है। मसल रिलैक्सेशन के लिए जो है वो बहुत अच्छी अच्छी थेरेपी में भी टेक्निक्स आती हैं, जिस तरह मैंने आपके साथ माइंडफुलनेस की है, वो आप अगर करते जा रहे हैं एवरी वीक, जिस तरह लेट से आप कर रहे हैं 12-14 वीक्स, तो आपके मसल्स जो हैं वो धीरे धीरे खुद रिलैक्स होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ 3-4 चीज़ें हैं जिसका ख्याल करना पड़ता है, स्लीप आपकी वापस ठीक होने लग जाती है। लेकिन प्लीज स्लीप का ख्याल कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है एकदम से आपकी मेमोरी के साथ, और उसकी आप मेडिसिन लेते हो तो और ज्यादा खतरनाक है। दोनों ही कंडीशंस खतरनाक है। Can I add something? Sorry, just to answer, was it Kulsum that was talking? Yeah, Kulsum, just to let you know, there's all natural supplements that you can also take that will help you with your sleep. Magnesium is excellent because it will also relax your body and it helps with sleep. And also melatonin is very good. If you take melatonin, I take both of them. The magnesium I take as a capsule. You can take it at bedtime, and not just for your sleep, but magnesium helps with so many functions in the body. And the melatonin, just as a spray, I have it for the nights where if I wake up and I feel like I'm not getting a good night's sleep, 3 sprays under the tongue, 20 minutes, I'm out again. And you actually wake up feeling very well rested. It helps you go into that REM sleep. So, yeah, but there are natural supplements if you want to get off the medication. Fauzi, I have one question. You told about the magnesium. I recently done my blood work and my magnesium was normal. So if someone's magnesium is on normal level, he can take the extra magnesium? We can talk about that after. I don't want to interrupt Kiran's. Maybe we can come back to that. Okay, awesome. Kiran, जी आपसे एक क्वेश्चन है। अभी कुछ दिन पहले a friend called me और उसने मुझे, उसे कोई जरूरी काम था मुझसे, उस वक्त मैं दूसरी लाइन पे किसी से बात कर रही थी, मेरी सारी अटेंशन उसकी तरफ थी। उसने मुझे जरूरी काम का, मैंने कहा अच्छा बस जैसे ही मैं ये फारिग होती हूँ मैं तुम्हें भी करती हूँ। तो उसके बाद जब मैंने उनसे जिससे मैं बात कर रही थी वो बात मैंने कंप्लीट करके खत्म की, उसके बाद मैंने हंडिया बनानी शुरू कर दी। आई विल टोटली फॉरगेट, यानी मुझे बिल्कुल याद नहीं आया। शाम के वक्त मैं अपने टेबल पे बैठ के कुछ करने लगी तो मुझे ख्याल आया कि मैंने उस फ्रेंड को फोन करना है,
ये नहीं कि उसने मुझे कॉल की थी, उसका मैंने, मुझे खुद अपना कोई यानी कोई बात याद आई थी, मैंने उसको वो बात बतानी थी, तो मुझे याद आया उसके तो दोपहर को फोन आया था और आई वॉज टोटली फॉर गॉड कि उसने मुझे क्या बात कही है। मैं उसको याद करने की कोशिश कर रही हूँ, ये मुझे याद है कोई जरूरी बात थी, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मैंने उसके कॉल की, उससे बात की और मैंने कहा तुमने मुझे कॉल की थी, कहती हाँ तुमने मुझे भेजा क्यों नहीं। मैंने कहा क्या, यानी फिर भी मुझे याद नहीं है। उसने मुझे बताया, उसके बाद भी मुझे याद नहीं है। इज दिस डिमेंशिया? हम कभी भी इग्नोर नहीं करना चाह रहे कि अगर कोई डिमेंशिया के अर्ली साइन है, तो हम हमेशा यही बात करते हैं कि अभी इस पॉइंट से आगे करना क्या है। ठीक है, जब ये चीजें आपको नजर आती हैं, क्योंकि मैं आपको खुद बताती हूँ कि मेरे साथ जो है वो 2 साल पहले क्या हो रहा था, जब मैं रजिस्ट्रेशन अपनी करी थी रेगुलेशन, तो यही हो रहा था कि भाई किसी ने बात की और मतलब ये काफी अलार्मिंग लगता है अपने आप को ही सोचने में कि भाई उसने मुझे ये बोला था, मुझे ये पता है कि उसने कुछ बोला था, क्या बोला है ना, और उसने मुझे कहा है, फिर भी मुझे याद नहीं याद आया ना, क्योंकि वो ब्रेन में फिट इन नहीं किया। तो मैं सबसे पहले जो है ना, इस जो आप बात कर रहे हो ना, उसमें मैं आपको एक सजेशन, क्योंकि जिस जिसको लग रहा है कि वो इससे रिलेट कर रहा है, तो मैं सबको कहूंगी कि एक चीज करके देखें, और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि यही हो रहा है जो इस तरह ही भूल रहा है, तो फिर क्या करना है। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट है या कैसे हम लोग? नहीं, डॉक्टर से बात करनी चाहिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है। फैमिली डॉक्टर को आप जाके बात करें, वो आपके देखेंगे कि ब्लड लेवल भी क्या है, किसी और वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन ये कि ये जो एक एक से हैं थोड़े, वो कितने ज्यादा सिम्टम्स नजर आ रहे हैं एक वीक में, एक तो ये चीज बहुत जरूरी है। लेकिन इससे सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी, क्योंकि आप देखो साफ मुझे बता रहे हो कि जब मैं उससे बात करी थी, बीच में कोई और कॉल आ गई, उसने जो भी बोला आपने रजिस्टर नहीं किया, आप उस कॉल के बारे में सोच रहे थे या कुछ और कर रहे थे, तो वो ब्रेन में अगर रजिस्टर नहीं हुआ, सिर्फ आपने सुन लिया, क्योंकि अब हमारी जो ये आ गया है ना, ये आईफोन दौर, और ये जो सब, ये जो अब टेक्नोलॉजी पे चली गई चीजें, हम ब्रेन को यूज ही नहीं कर पा रहे होते, और हम फिर बाद में अपने ब्रेन को ब्लेम कर देते हैं कि वो मेमोरी में क्यों नहीं गया या मुझे याद नहीं आया। आप सिंपल एग्जांपल ले लें, जब हम कंप्यूटर में कोई फाइल, देखो वर्ड डॉक्यूमेंट आप बना रहे होते हैं, अगर सेव का बटन नहीं क्लिक किया तो सेव नहीं होगी ना, वो तो डिस्ट्रॉय चली गई, जैसे ही आपने बंद किया डिलीट हो गई वो। तो ऐसे ही अगर आपने मेमोरी में उसको आपने सुन लिया उस टाइम पे, लेकिन जिस टाइम आप सुन रहे थे उसकी बात, उस टाइम पे आपको ये ख्याल आ रहा था कि दूसरी फ्रेंड का कॉल आ रहा है, उसने जो मुझे कहा था मुझे वो करना है, उधर से बच्चा बुला रहा है, चूल्हे पे क्या रखा था मैंने, क्या टाइम हो गया, लेट तो नहीं हो रही। तो अगर 4 चीजें और चल रही और आपने उसको रजिस्टर नहीं किया ब्रेन में, तो फिर वो कैसे रिट्रीव होगी इंफॉर्मेशन। तो मैं ये कहूंगी कि जिस जिसको ये लग रहा है कि मैंने चाबी कहाँ रखी थी, उस फ्रेंड ने क्या किया था मैं भूल गई, या पिछली दफा क्या हुआ मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, तो प्लीज सबसे पहले तो ये करें कि नेक्स्ट जो आपका ये मंथ है, इसी वीक से, आज से शुरू कर लें कि जब कोई बात कर रहा होता है, जब कोई चीज हो रही थी, उसको जरा फोकस से सुने, नाम भी सुने सही से कि हाँ इसने क्या नाम मुझे बताया था, भाई इनका ये नाम है, अच्छा किरण ने आज क्या बात की थी, अच्छा उस्मा ने ये कहा था, मेरी फ्रेंड की कॉल आई। वो अगर आपको लग रहा है कि दूसरे की कॉल आ रही, तो उसे कहो अभी नहीं मुझे बताना, मुझे मेरी तवज्जो ही नहीं है आपकी तरफ, आई एम नॉट फोकसिंग, मेरा कंसंट्रेशन नहीं है, आई विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर दिस। क्योंकि अगर आपने उसको रजिस्टर ही नहीं किया मेमोरी में, और फिर बाद में आपको लग रहा है कि ये रेड फ्लैग है ना, तो हो सकता है आपने सुना ही नहीं उस टाइम तवज्जो से। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि कहीं पे अगर आपको ये चीजें लग रही होती हैं, तो इसको इग्नोर करने के बजाय डॉक्टर से पूछना चाहिए, अपने फैमिली डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बना के, बिकॉज दे नो योर प्रीवियस हिस्ट्री, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा चीजें जरूरी है, जो आज हम बात करने वाले हैं, रिसर्च डिमेंशिया अल्जाइमर के अराउंड ये बता रही है हमें कि हम इसको डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं, और अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से प्रिवेंट कर सकते हैं, और अपने गोल सेट कर लें। क्योंकि ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, ये नहीं हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम बिल्कुल आराम से जो हमारा दिल चाहता है वो हम करते रहते हैं, और हेल्थ का भी ख्याल नहीं करते हैं। और फिर बाद में जब वो 10, 15, 20 साल हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल हाई चल रहा था, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम चल रही थी, स्लीप इशू चल रहा था, ईटिंग जो है वो हेल्दी है ही नहीं, ध्यान उस तरफ, और फिर एक टाइम आता है जब हम कहते हैं कि अब मेमोरी लॉस होने लगी, तो ब्रेन तो उसमें फिर डैमेजेस होंगे ना।
तो अगर हम इसको थोड़ा सा एक एक करके, मैं ये नहीं कहूंगी कि जो मैं आपको 10 चीजें शेयर करने वाली हूँ उसमें से एक चीज शुरू कर लें। फर्स्ट वीक अच्छा ठीक है, मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगी थोड़ी। आप लोग, आई नो यू गाइस आर डूइंग एक्सरसाइज ऑलरेडी, है ना। दूसरी उस पे आ जाए कि ईटिंग हेल्दी में क्या करना है। तो ये सब चीजें एक एक करके इंट्रोड्यूस कर लें अपनी लाइफ में, कोई चांस ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी ये बात फैक्ट है, हमारी मेमोरी इस एज में वैसी नहीं है जो हमारे पेरेंट्स के पास थी। उनके पास डिवाइसेस नहीं थे, उनको अगर रास्ता ढूंढना होता था तो उनके पास जीपीएस नहीं था, मोबाइल नहीं थे फोन सेव करने के लिए नंबर, उनको अपनी दिमाग का ही इस्तेमाल करना पड़ता था मेमोरी। उनकी मेमोरी बहुत बेटर थी हमसे। जो अब हमारी मेमोरी है, इससे अगली जो जनरेशन आएगी उनका तो पता नहीं क्या होगा। हमारी मेमोरी गूगल पे चल रही है। बिल्कुल, है ना। तो प्लीज उसको, ब्रेन को यूज करें। जो इवन हम सिंपल भी इंफॉर्मेशन सेशंस देते हैं, हम हमेशा ये बात करते हैं, मसल देखें, मसल बनाते हैं ना लड़के, ये डोले बन गए जी, है ना। तो मसल जो है वो यूज करने से बनते हैं। अगर आपने यूज नहीं किया है तो हमारे मसल्स लूज हो जाते हैं, है ना। डॉक्टर भी कहते हैं एक एज के साथ भी मसल लूज हो रहे हैं। तो ऐसे ही ब्रेन भी एक मसल है ना, उसको आप जितना यूज करेंगे वो स्ट्रांग होगा, चुस्त रहेगा। हम लोग यूज ही नहीं करते हैं, फिर हम कहते हैं कि नहीं अब हम क्या करें, हमें याद नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा फोकस करके उसको जो है वो स्टोर कर लें मेमोरी में। तो गोल्स में कहूंगी कि जो भी बैठे हैं, अगर कोई पेपर पेंसिल लेके बैठे हैं तो दैट विल बी वेरी ग्रेट। दिस इज टाइम टू चेंज, क्योंकि हम लोग बिल्कुल सोए हुए हैं, हमें कोई होश नहीं है अपने ब्रेन की। हम सोच रहे हैं कि अच्छा चलो जी, दे दिया ऊपर वाले ने, चल रहा है, चलता रहेगा। लेकिन ऐसे नहीं चलता रहेगा, क्योंकि अब जो ये टाइम है इसमें स्ट्रेस भी हाई है, स्ट्रेस से भी हमारा ब्रेन खराब होता है। इसमें हम मेडिसिन भी लेते हैं, मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हार्ट की कंडीशंस जो है, आई नो साउथ एशियन हमें बहुत, हम हेल्दी हार्ट लेके नहीं घूमते। अगर हार्ट से रिलेटेड, जिस तरह डॉक्टर जमशेद ने बताया कि कोई प्रॉब्लम होती है या कोई स्ट्रोक वगैरह का इश्यू होता है, तो वो सीधा जो है वो आपके ब्रेन डैमेज की तरफ पहले चीजें चली जाती हैं। तो गोल सेट कर लें अपने पास कि हाँ मैं ये करूंगी, ये करूंगी, और विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो है देखते जाएं कि क्या चीजें हैं जो कर सकते हैं, और उस पे जो है वो एडवांटेज होगा। सॉरी मेरी स्क्रीन शेयर चला गया। ठीक है, तो कौन से हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरी फ्रीज हो जाती है मेरी स्क्रीन, उसको पसंद नहीं आ रही स्क्रीन को मेरी प्रेजेंटेशन, है ना। आप सबका दिल चाह रहा है मैं इधर देख के बात करूं। दूसरी दफा फ्रीज हुई है, लेट मी ट्राई अगेन। नहीं, अच्छा मैं नहीं, स्क्रीन चेंज करके फिर उसको लगाती हूँ। स्क्रीन को पता है कि यहाँ सब इंटरैक्टिव डिस्कशन में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि उसको पसंद नहीं आ रहा, मैं नहीं करती स्क्रीन शेयर, मुझे लगता है ऐसे ही बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद किरण मकसूद साहबा, माशाल्लाह आपकी मालूमात और डॉक्टर गुल साहब की मालूमात से काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब मुझे अपने, अगर आपके पास वक्त है तो जी जी, वक्त ही वक्त है। अपने ज़ाती कुछ जिन चीज़ों से मैं मुतासिर हूँ, नफ्सियाती तौर पर या ज़हनी तौर पर, तो वो कुछ मुझे बयान करना है। अगर आपके पास वक्त है तो मैं अर्ज करूं। बिल्कुल, इसको हम जल्दी से गुजार लेते हैं कि क्या क्या चीजें जो हैं वो हम कर सकते हैं, क्या क्या गोल्स में रख सकते हैं। क्या आपकी इजाजत है तो फिर बताइए। आप को मजीद कुछ फरमाना है तो फरमाइए, किसी और का कोई सवाल है तो वो ले लीजिए। तो नहीं, मैं आपका सवाल आपका ही पहले लेंगे, आपने पहले बताया। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको गोल्स जो हम अभी बात कर रहे थे, ये अगर आपकी इजाजत है मैं गोल्स खत्म करके थोड़ा सा, ताकि सबको पता चल जाए, और फिर आपका सवाल ले लेती हूँ। ठीक है, जरूर जरूर, आप उसकी तकमील फरमाइए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया इजाजत देने का। तो अब जो हमारे जो गोल्स हम सेट कर सकते हैं, सबसे पहला गोल तो जो है वो हेल्दी बॉडी रिजाइड्स हेल्दी ब्रेन। छोटे होते से सुनते आते हैं, लेकिन जब बैठने लगते हैं और टीवी देखने लगते हैं फिर याद नहीं आता कि ये इसको कुछ करना है इसके बारे में।
तो ये है कि अगर आप नहीं वॉक कर रहे, आजकल ठीक है वेदर ठंडा है, गर्म कपड़े पहन के चले जाएं, बहुत दिन अच्छी धूप निकलती है, योगा मैट रख लें घर में आप। अब तो सिटी ऑफ मिसिसागा जो है वो वीडियो पे फ्री करवा रही हैं क्लासेस, है ना, उसमें आप लिंक शेयर कर देते हैं हम आपके साथ सबके, प्लीज कीजिए। बिकॉज अगर तो हेल्दी नहीं होगा, बॉडी एक्सरसाइज वॉक कुछ भी देख लीजिए, तो फिर ये नहीं होने वाला। ये तो सबसे गोल नंबर 1 है, मैं कहूंगी कि सबके लिए, मेरे अपने लिए भी। आई नो, ठीक है। सेकंड गोल जो है वो कहते हैं कि अगर आप बुक्स रीड करते हैं, कोई भी एक आपका जो शौक होता है ना, आप अपनी शौक की कोई नॉवेल्स आपको पसंद है, कोई बुक रीडिंग पसंद है। मिसिसागा लाइब्रेरी वाले जो है वो पहले सीनियर्स क्लब ऑफर करते थे। आई डोंट नो, मैं तो आप लोगों को कहूंगी कि आपका खुद अपना आपस में इतना अच्छा ग्रुप है, एक रीडिंग क्लब बना लें। एक महीने में एक बुक भी पढ़ी, कोई भी पढ़ ली, और फिर सब मिलके उसको डिस्कशन कर लें कि हाँ भाई इसमें ये चीज मुझे पसंद आई है, इसमें नहीं। और या फिर एक बुक ना पढ़े, सब अपनी अपनी मर्जी की बुक पढ़ लें, है ना, और फिर आके एक जगह पे इकट्ठे होके बात कर ली कि मैंने तो ये पढ़ी थी, कि आपने क्या पढ़ी, अच्छा उसके बारे में सबने बात। तो क्योंकि क्या होता है कि आप जब पढ़ते हैं तो भी आप इस यूज कर रहे हैं अपने ब्रेन को, फिर जब आप उसमें आके शेयर कर रहे हैं, तो सारा मकसद यही है कि जब हम बात करते हैं, सुनते हैं, ये कम्युनिकेशन जब खत्म हो जाता है ना एक एज के बाद, और एक कमरे में आप बैठे रहते हो या सिर्फ टीवी देखते हो, तो आपके जो चांसेस हैं अल्जाइमर डिमेंशिया के वो बढ़ जाते हैं। इवन क्योंकि अगर आप दूसरी कंट्री में भी रहते हैं, आपके पास ज्यादा चांस नहीं है, अगर आप करते हैं स्काइप पे या किसी और चीज पे बात पीछे बच्चों से, या इधर भी हैं बच्चे, कम्युनिकेट जितना भी करते हैं उतना अच्छा है। नहीं करते, फ्रेंड्स बना लें, एक दूसरे से बात कर ली। वो नहीं होती टैक्सी में ही जा रहे हैं, टैक्सी वाले ड्राइवर से बात करते चले जाएं, क्योंकि ये कि आप जब बात करते हो तो हैरत की है ना कि हम सोचते हैं कि भाई टीवी देखते हुए या कंप्यूटर देखते हुए हम शायद ज्यादा ब्रेन यूज कर रहे होंगे, नहीं, बात करते हुए ज्यादा ब्रेन यूज होता है, क्योंकि वो ब्रेन फोकस कर रहा होता है कि अगला क्या कह रहा है, उसको जवाब भी तो देना है, उसकी सुननी भी है, और फिर अपनी भी रिलेट करके आपने जवाब देना है। तो जब तक आप कन्वर्सेशन ग्रुप्स में आ रहे हैं, आप इधर आ रहे हैं उस्मा जी के पास, आप लोग सेफ हैं। बस एक दो और चीजें साथ साथ करते जाएं अपनी, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। देखें, आप आते हैं, बात करते हैं, दिन का टाइम निकालना, और यही सब चीजें हैं जो आपको करनी है, यही आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। तो जो तो जुड़े हुए हैं पहले से मॉर्टन वुमेन काउंसिल से, प्लीज जुड़े रहें। जो फ्रेंड्स छूट गए हैं, नहीं आते, उनको लेकर आए। ये सबसे बड़ा जो है ना, ये सबसे तो आपका ये एक बन जाएगा गोल, और इससे जो है आपकी डिमेंशिया और अल्जाइमर जो है आपके पास बिल्कुल भड़कने नहीं वाला बिल्कुल भी। ये तो मुझसे आप लिखवा लें, ये पक्का है। ठीक है। अगर जैसे आपने कहा बुक पढ़ के डिस्कशन करें, तो मूवी देख के भी डिस्कशन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मूवी एंड अगर आप बुक को कंपेयर करें तो दोनों इक्वल हैं या बुक इज बेस्ट? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, क्योंकि जब आप मूवी देख रहे होते तो आप बहुत पैसिव हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको पता है कि आपने मूवी देखने के बाद डिस्कशन करनी है, तो आप जरा फोकस से देखेंगे, एक एक चीज पॉइंट गौर करेंगे, है ना। आप ये भी नोट कर लेंगे कि राइटर कौन था मूवी का, प्रोड्यूसर कौन है, कैरेक्टर्स के नाम क्या थे, क्या बात हो रही थी, कहानी क्या थी, स्टोरी क्या थी, है कि नहीं। आई मीन टू से कि बुक और मूवी को अगर आप कंपेयर करते हैं तो वो दोनों एज गुड एज इक्वल हैं, या बुक बेस्ट है, मूवी ओके है। लेकिन इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है कि चलो जी मूवी देख के बात करनी है, तो क्यों नहीं, मुझे भी बुला लीजिएगा ठीक है, आ जाइएगा। बुक बेस्ट है। ठीक। Can I add something? Oh, sorry, go ahead. Yeah. I was just going to add that when you're reading a book, Gulnaz, especially if you're reading it for a book club, oftentimes you'll be taking notes because there's certain things that jump up and you want to write them down so you can bring it up in conversation when you're having dialogue. And what that does is you're using different parts of your brain, because you're reading the book, you're writing it, you're looking at your notes. So there's the visual, you read it back to yourself, like you're engaging so many more areas of your brain. And the whole thing with the brain is for us to be mindful of it, right? So we want to, it's like any other muscle. If you don't use it, it's going to start to wither and die. Book is best, as Fawzia ji mentioned.
बिकॉज आप विजुअल मेमोरी बना रहे होते हो साथ। आप देखो, आप बुक पढ़ रहे हो, वो बच्चा कहीं लेट्स से कुछ भी जो भी चल रहा है ना, कि वो कहाँ गया, शॉपकीपर से बात की, उसने ये बाय किया, देन ही केम बैक, ही पेड मनी, इज नाउ इन द बस लीविंग, नाउ बस इज लीविंग। तो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, तो देखो आपकी मूवी में तो आप वो देख ही रहे हो, लेकिन इसमें रीडिंग हो रही है और आपकी विजुअल मेमोरी खुद ही खुद बन रही है। और हर एक की जो एक विजुअल मेमोरी की कैपेसिटी है वो बहुत फर्क है। हम सब जब देखो मैं बोल रही हूँ तो आपके विजुअल, आपने सबने विजुअलाइज किया है, लेकिन सबके अपने अपने ध्यान से जो है वो बस का कुछ और कॉन्सेप्ट होगा, बच्चा, शॉप, पेइंग मनी, अपना अपना वो आपका आएगा विजुअल। तो वो जो आप विजुअल मेमोरी बनाते हो और फिर उसमें कनेक्टेड जो होते हैं आपके सिनेप्सिस जिस तरह से, वो बिल्कुल डिफरेंट है जैसे फौजिया कह रही है। तो दैट इज बेस्ट। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी जो चीज आपकी ये इंपॉर्टेंट है, एक एज के बाद जो ट्रिप एंड फॉल प्रिवेंशन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें डिमेंशिया और अल्जाइमर में। बिकॉज काफ़ी सारे केसेस जो हैं डिमेंशिया के वो ऐसे देखने में आते हैं कि कहीं पे घर पे गिर गए, चोट लग गई, और उसके बाद जो है वो ब्रेन जो है उसकी हेल्थ डाउन होती चली गई, क्योंकि रिकवरी नहीं हुई। क्योंकि चोट जो है वो ब्रेन के लिए जारी बात है अच्छी नहीं है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, और इंटरनल ब्लीडिंग किसी भी एज में भी हो जाए तो ब्रेन डैमेज हो जाता है पार्ट। वो सिर्फ सीनियर्स के लिए नहीं है, लेकिन हाँ सीनियर्स के लिए जो है वो ये बहुत ज़रूरी है एक एज के बाद कि आप उसको ख्याल करें कि घर में जो है अगर आपके मैट्स जो हैं वो लूज हैं, कि उनको कैसे सही जगह पे हो कि वो स्लिप होने का खतरा ना हो। सबसे पहले तो शूज़ जो है वो मैं हमेशा कहती हूँ, एंड आई नो के हमारे सीनियर्स इस चीज़ का बहुत ख्याल करते हैं कि बहुत एक स्टाइलिश शूज़ लेने के बजाय बहुत अच्छे ग्रिप वाले और अच्छे, मतलब कपड़ों से पैसे कम कर लिए लेकिन शूज पे जो है वो अच्छे से स्पेंड कर लिया कि आपकी ग्रिप वाला शू हो के इसमें जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर रेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सीढ़ियों के साथ, रूम में, कई दफ़ा वॉशरूम में एक एज के बाद अगर आपको लगता है ज़रूरत, फ्लोर जो है आपके टब अगर आपको लगता है या बाथरूम जो है वो स्लिपरी है तो उसकी ट्रीटमेंट्स आती हैं टब की, वो करवानी चाहिए ताकि वो स्लिपरी ना रहे। लाइट जो है वो घर में अच्छा सिस्टम होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि थोड़ी डिम है लाइट और आप जब उठते हैं तो आपको नहीं ध्यान पड़ता कि कहाँ पे पाँव, स्टेप कहाँ पे है, तो लाइट की तरफ जो है वो इसमें ख्याल करना चाहिए बिल्कुल। उसके अलावा आपकी है मेडिकेशन, क्योंकि अगर मेडिकेशन जो है वो सेट नहीं है, कभी लगता है कि ड्राउजी हो जाता है दिन में, या कोई और इस तरह की स्पिनिंग हेड या कोई चक्कर या आंखों के आगे अंधेरा आता है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से जो है वो इसकी बात ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि जो गिरने से जो चोट लगने का ख़तरा है और सर की तरफ वो बहुत ज़्यादा ख़तरा कर सकता है गिरने से। और क्या चीज़ आपको बचा सकती है इन सब चीज़ों के अलावा? रेगुलर वॉक। बिकॉज अगर पाँव के मसल्स स्ट्रांग रहेंगे, लेग्स के मसल्स स्ट्रांग रहेंगे, आप उनको यूज कर रहे हैं ज़्यादा, तो वो अच्छे से वर्क करेंगे आपके लिए। देयर इज नो चांस कि भाई अगर, क्योंकि वो विद टाइम ज़्यादा बैठे हैं, कई दफ़ा ये होता है कि जिसने आप ऑपरेशन कराया घुटनों का या कोई और सर्जरी हो गई, तो उसके बाद आप बैठते हैं थोड़ा टाइम, तो आपके मसल्स ऑलरेडी वीक हैं, तो फिर आप उठे तो उसमें ख्याल कीजिए शुरू में कि क्या ख्याल करना है कि जिसकी वजह से थोड़े जब तक मसल्स जो हैं वो अपने उसमें शेप में नहीं आते, आहिस्ता आहिस्ता वॉक करें पकड़ के कि जो है वो इसमें जो है फॉल जो है वो नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई स्मोकिंग या कोई ड्रिंकिंग चल रही है कहीं पे भी, तो बहुत ज़्यादा चांस जो है वो बढ़ जाएंगे डिमेंशिया के और अल्जाइमर के भी। अल्जाइमर जिस तरह भूल की बीमारी हम बात कर रहे थे, तो अल्जाइमर की वजह से वो डिमेंशिया हो जाएगा अगर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग है। और स्मोकिंग जो है वो हमारे कल्चर में बहुत है, कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग भी है, तो और ये दोनों जो है वो फॉल कर जाते हैं क्योंकि एडिक्शन में। तो कई दफ़ा चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रहे होते लोग इससे कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन बच नहीं पा रहे। तो प्लीज़ ये अपने अंदर रख के नहीं इसको बैठे रहना चाहिए अकेले में कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ और नहीं बच पा रहे। क्या करें, बाहर निकलिए, प्लीज़ हेल्प लीजिए। कम्युनिटी में बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज हैं, बहुत अच्छे वर्कर्स हैं, और जब आप क्या करते हो कि जो आप निकलते हैं आप हेल्प लेते हैं तो आपको पता चलता है कि वो एडिक्शन बिहेवियर कैसे
आपके क्या ट्रिगर्स हैं आपको पता चलते हैं, आपको कैसे आप अपने आप को सेव कर सकते हो, उसके बदले आप क्या चॉइसेस ले सकते हो कि आपका ये एडिक्शन बिहेवियर किकिंग ना करे। तो जब आप अपने किसी काउंसलर के पास बैठ के पर्सनल ये बात शेयर करते हैं तो आपको खुद कई दफ़ा वो चीज़ें जहन से निकल रही होती हैं, आप कोशिश कर रहे होते हो इतने सालों से, लेकिन वो फिर आपको समझ आने लग जाती हैं और ये है कि उसमें वर्क कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर हो सकता है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का। टेकिंग केयर ऑफ मुझे जी 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 मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था कि ये पार्किंसन जो है ये जेनेटिक डिजीज है या किसी को मतलब अपने उससे होती है, जेनेटिक डिजीज तो नहीं है इसके? पार्किंसन जो है इसमें प्रोटीन्स जो है वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं ब्रेन में, और ये जेनेटिक जो रिसर्च जो है वो ये बता रही है कि ये जेनेटिक भी हो सकती है, क्योंकि कुछ जीन्स हैं जिसमें ये अगर है तो उसके बाद जो है वो ये इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा रिसर्चेस यही बता रही हैं कि ये किसी भी एज में जो है वो डिमेंशिया कॉज कर सकती है पार्किंसन। अगर आपको कुछ और हाँ इससे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए पार्किंसन के बारे में? नहीं, असल में मेरी मदर की डेथ जो है ये पार्किंसन के बाद, उनको सर्जरी भी उनकी एक हुई थी, तो वो फिर 2 माह सिर्फ रही थी हयात। तो मैं वही पूछना चाह रही थी कि ये कोई जेनेटिक है या, क्योंकि उन्हीं को मैंने देखा हुई थी, या शायद कोई एक आधा और हो फैमिली में, लेकिन मैंने उनको देखा था, तो इस वजह से मैं पूछ रही थी। हाँ बिल्कुल, इसमें न्यूरॉन डैमेजेस के बारे में ही बताया जाता है, और कुछ केमिकल लेवल्स जो हैं ब्रेन के वो जो हैं इसमें जब डिस्टर्ब होते हैं तो पार्किंसन है। ब्लड प्रेशर और हार्ट कंडीशन से भी रिलेटेड है। उनको पहले ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था? ऐसा इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन वो डायबिटिक थी और ब्लड प्रेशर की भी मेडिसिन लेती थी, लेकिन इतना सिवियर नहीं था। लेकिन पता नहीं है ये शुरू कैसे उनको हो गया। ये रेगुलर तो यही दवाइयां ज्यादा लेती थी, ये अपना डायबिटीज की या फिर ब्लड प्रेशर की बस। तो इसमें यह है कि अगर आपको लग रहा है कि फैमिली में एक और मेंबर के पास भी है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी किसी भी चीज़ के लिए हमें लग रहा होता है, इवन हार्ट के और दूसरी भी चीज़ें, तो वो अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए कि मेरी जो है वो फैमिली में एक मेंबर को हुआ है, और किस तरह से हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं कि वो जो है हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकें ना, पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें। तो मैं ज़रूर इनकरेज करूंगी कि फैमिली डॉक्टर को इसके बारे में बताया जाए, क्योंकि एक चीज हमारी वो जेनेटिक है कि जैसे ट्रिमर हाथ में खुसूसन ट्रिमर जो है ये काफी लोगों को था, और मुझ में भी है और मेरे बच्चों को भी, हालांकि वो यंग है, लेकिन उनमें भी ये है चीज कि हाथ शेक करता है। तो ये भी कोई मेरे ख्याल क्या वजह हो सकती है, न्यूरो की कुछ वजह हो सकती है हाँ या? बिल्कुल होती हैं, और कई दफ़ा हमारे पास मैंने देखा है कि अब लेटली जो है यंग जनरेशन उनमें इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि हमारे पास आते हैं थेरेपी के लिए लोग, के बस सिर्फ ये बताते हैं कि भाई फैमिली कंडीशन है, राइट नाउ आई एम डूइंग वेरी वेल, और लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि मुझे एक्टिव रहना है या एक्सरसाइज करनी है, या फिर डेली जो है वो इन चीज़ों का, पानी पीने का ख्याल करना है, या ये 3-4 चीज़ें हैं, और मैं क्या है कि खुद से जब हम अकेले करते हैं तो कर नहीं पाते हैं, तो किस तरह से जो है मैं अपने आप को उसमें करके रखूं। तो आप अगर किसी भी, इवन जिससे आप उस्मा जी से बात करें, इधर जो अपने कम्युनिटी सेंटर के काउंसलर हैं, उनसे भी आप एक दफ़ा डॉक्टर से बात करके, तो कि अच्छा मैं बच्चों को क्या क्या चीज़ें बताऊं, वो आप एक लिस्ट जो है वो नोट्स बना लें कि हाँ ये चीज़ें उनको ख्याल करने की ज़रूरत है, ये मेडिसिन ना लें कभी, कोई किसी का अगर आपको लग रहा है, क्योंकि जीन्स देखें जब भी अगर होती भी हैं तो हम ये कहते हैं कि जीन्स को शो अप होने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। जैसे आप समझो कि एक सीड है आपके पास, तो जब तक आप उस सीड को जो है वो मट्टी में नहीं डालेंगे, उसका ख्याल नहीं करेंगे, पानी नहीं डालेंगे उस पर, तो उसमें से प्लांट नहीं निकलेगा ना। तो इसी तरह अगर जीन है तो वो एक सीड की तरह है, तो जब तक आप उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं देते, आप उसका ख्याल नहीं कर रहे, आप उसको पूरे अच्छे से, तो तब तक वो जीन नहीं शो करेगी अपने आप को। लेकिन हाँ, अगर आपको उस जीन के होते हुए ये लेट्स से 5 चीजें हैं जिनका ख्याल करने की जरूरत है, और आप वही चीजें रोज कर रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपने कभी डॉक्टर से पूछा भी नहीं है,
तो फिर ये हो सकता है कि आप उसको जो है वो शो अप हो जाए वो चीज टाइम पे एक एज में। तो उसके लिए हमेशा जो है ये ख्याल करना चाहिए। तो मैं ज़रूर जो है आपको इनकरेज करूंगी कि इसको एक दफ़ा देख के, और अब तो इतने अच्छे जेनेटिक टेस्ट भी आते हैं, क्योंकि अगर वो भी है तो बच्चे जो यंग जनरेशन है वो करके तो अपना पता कर लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ है और मुझे ये लाइफ टाइम इसका ख्याल करना है, तो वो आगे अपने बच्चों को भी बता देते हैं। तो क्योंकि मेरी फैमिली डॉक्टर जो थी उनसे मैंने डिस्कस किया था ये सब, तो वो एज सच शायद इतनी नॉलेज इस बारे में नहीं थी उनको, तो वो कह रही थी आप न्यूरो को मैं रेफर करती हूँ, आप उनको दिखा लें, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, बिल्कुल जी। तो करवा लीजिए आप रेफर, और बिल्कुल इस पे वर्क कर लीजिए थोड़ा सा, तो बिल्कुल ठीक है। कभी कोई और क्वेश्चन हो तो जरूर आप उस्मा को लिख सकते हैं, मैं अपना ईमेल छोड़ दूंगी जी। तो किरण, अभी तो मीता जी और रिंटू जी ये दोनों कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल जरूर जी। जी मीता जी। थैंक यू उस्मा जी, थैंक यू किरण, बहुत अच्छा आपका सेशन, बड़े आराम से प्यार से आपने इस चीज़ के बारे में बताया। मेरा बहुत क्लोज एसोसिएशन रहा है क्योंकि मेरे मदर इन लॉ को डिमेंशिया था और मैंने बड़े साल उनको ग्रेजुअली उनकी ब्रेन को ऐसे डिटीरियोरेट होते देखा है। तो इनफैक्ट मेरी उनकी 5 बेटियां, मेरी 5 सिस्टर्स इन लॉ हैं, 5 नंदे जिसको बोलते हैं। तो अब वो जैसे एक सबसे बड़ी जो है वो शी इज 78, ठीक है, तो वो उनसे छोटी भी वो 75 की हैं शायद, ऐसे करके जो ऊपर वाली 3 है, ठीक है, तो वो तीनों अब ऐसे बोलती हैं कि जिवें बीजी नूं हुंदा सी उवें सानू भी होना शुरू हो गया है, कि मतलब जैसे कि फॉरगेटफुलनेस और ये वो। तो मैं उनको अक्सर ये बोल देती होती थी, पहले वो बहुत बोलते थे हाय भुल जाता है, हाय भुल जाता है। आमतौर पे आपको सुनेगा पंजाबी लेडीज भी, हम सब लोग बोल रहे होते हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि सबसे पहले तो आप ये भूलिए कि आपको भूल जाता है। तो जो ये थॉट फॉर्म से आप कुछ भी करते हैं ना कि हमें भूल ही जाना है, हमें तो भूल ही जाना है, तो मैंने उनको काफी इस चीज में उनको एनकरेज किया कि नहीं आप याद रख सकते हो कि इतनी मुश्किल बात नहीं है, याद रख सकते हो, याद रख सकते हो। जैसे आपने ये लाइफस्टाइल की बातें कही, ये भी उनको काफी एडवाइस दी। तो मैं आपसे एक्चुअली एक बात मेरे जो जहन में आ रहा था सवाल, कि यह मेल फीमेल रेशियो अलग भी है क्या डिमेंशिया की, कि विमेन में ही ज्यादा देखा जा गया है कि मेन में भी होता है? मेरी ग्रैंड मदर को भी डिमेंशिया, मुझे याद आ गया इस बात पे, क्योंकि आई हैव सीन 2 ओल्ड लेडीज विद डिमेंशिया। तो और किसी को मैंने अपनी सर्कल में ज्यादा, मुझे मेल्स के बारे में नहीं पता। नहीं, रेशो तो देखिए ज्यादा लेडीज में ही है, और इवन यहाँ कनाडा में भी ज्यादा लेडीज में है। तो कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से लेडीज में ज्यादा है रेशो। लेकिन अगर आप देखो वैसे भी तो हमारे कल्चर की लेडीज को ही चले अगर देख लें तो बहुत जल्दी हम लोग सोशल आइसोलेशन की तरफ जाते हैं। एक एज 60 रीच होने की देर है, बल्कि उससे भी पहले कि हाँ बस ठीक है, बस अब बच्चों की शादी हो गई, आराम से बैठे एक जगह पे बैठे टीवी देख लिया, ज्यादा इंगेज नहीं करना अपने आप को। कभी वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ हुआ तो कोई किसी से बात कर ली। तो अगर वही बात हम कर रहे हैं, बार बार उसी पॉइंट पे आ रहे हैं कि आज अभी टाइम है, अब ये भूल जाए कि मैं 60 की हूँ अभी, या मैं 70 की हो गया हूँ, या मैं 80 ईयर्स हो गई हूँ, या मैं 40 हूँ। रिस्क सबके लिए, अब तो वो कहते हैं ऑन्टेरियो में कि डिमेंशिया का एक बराबर है, जीन है आपके पास नहीं है, क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, ये जो हम बैठते हैं, अगर हमारी हार्ट की हेल्थ अच्छी नहीं है तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी ब्रेन हेल्थ से। क्योंकि अगर हार्ट हमारा फुली ब्लड नहीं सही से पंप कर रहा, ऑक्सीजन नहीं सही से ब्रेन को मिल रही, वो आपकी फूड है ब्रेन का। अगर हम पूरा दिन बैठते हैं और वही फैट्स और वही फूड हम बिल्कुल ब्रेड और उस पे रहते हैं अपने फूड पे, तो वो एक टाइम तक जो है वो ब्रेन उसको उठा सकेगा ना। हम अपने जो फूड जो है वो इस तरह का दे ही नहीं रहे ब्रेन को। फिर ब्लड, सबसे ज्यादा लेडीज में ये प्रॉब्लम होता है ब्लड सर्कुलेशन का। ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं है। एंड वी नो, हम लोग जब मिलते हैं फ्रेंड ग्रुप्स आपस में, आई नो आप लोग काफी मेरे साथ रिलेट कर सकोगे, हम लोग बात करते हैं आपस में कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं है, कभी हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, कभी आंखों के आगे बैठ के उठो तो अंधेरा आ रहा है और ये वो चीजें। फिर उसके बाद जब बात कर ली, बस दैट्स इट, खत्म हो गई बात।
तो क्या होता है कि जेंट्स फिर भी चलो कर बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, अब जिस तरह लाइब्रेरीज अभी खुली थी तो चलो बैठ के कुछ कार्ड्स खेल लिए, कोई गपशप लगी, तो कोई हो रहा है कहीं ना कहीं। हमारे मॉडर्न विमेन काउंसिल में डिमेंशिया होने के चांसेस कम है विमेन को, क्योंकि थैंक्स टू उस्मा एंड द ब्यूटीफुल टीम, तो हमारी मीटिंग्स इतनी होती हैं कि हम तो उन्हीं में अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारी बड़ी अच्छी हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि मॉडर्न विमेन काउंसिल वालों में किसी को डिमेंशिया होने के चांसेस है। एंड विद दिस आई से सो बी इट। मुझे ऐसे दो छोटी छोटी बातें करती हूँ। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने शायद बात की थी कि हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं बहुत सारी चीजों पर। तो अब उसमें इंटेलिजेंस भी वर्ड आता है, तो मेरा हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहा है। और तीसरी पॉइंट मैं ये कहना चाहती थी कि मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है इन चीजों में। तो मैं अपना आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस पॉइंट। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा बता रही हैं आप, और मैं यही चाह रही हूँ कि मैं आप फ्लोर ओपन कर दूं ताकि आप सब लोग भी बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या चीजें हेल्प करती हैं। उससे पहले मैं सिर्फ ये वाली जो एक है स्लाइड आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि फूड की जब हमने बात की है ना, तो फूड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं देखती हूँ कि हमारे कल्चर में जो फूड है ना, इसको हम बिल्कुल हम वही अपने उस टाइम का फूड हम खाते चले आ रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स का जो लाइफस्टाइल था ना खाने का, जब वो लोग जो हैं वो अच्छे मतलब ऊपर नीचे उन्होंने फिरना भी है और उन्होंने पूरी एक्टिविटी करनी है। और जबकि कनाडा में आके इधर हमारे पास ना तो फिजिकल एक्टिविटी है, हमने एक जगह बैठ जाना है, रोज जो है वो उन गेस्ट ने, मेहमानों ने, किसी ने भी नहीं आना। जो आप मतलब आते ही आप एकदम से घर में होता था ना कि चलो जी दरवाजा खोला और पता चला कि पूरे गेस्ट आए हैं, अब उनके लिए बन रहा है कुछ, घर साफ हो रहा है सुबह, वो सब चीजें, वो तो रूटीन हमारी अब खत्म हो चुकी है। कनाडा में लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। तो फूड जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यही तो वो है जो हम अपने आप को अंदर दे रहे हैं और उसने ही अंदर जाके जो है वो सारा काम करना है। तो जब तक अगर हम बैलेंस नहीं ले रहे फूड और हम अपना ख्याल नहीं करें, और प्लेट के पोर्शंस जो हैं, ये आई होप कि उस्मा ने आप लोगों को इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। उस्मा, आपके पास कोई सेशन हुआ है फूड से रिलेटेड? बस होने वाला है अभी, एक डाइटिशियन शी इज कमिंग इन फ्यूचर प्रोग्राम्स प्लान है ना। तो ये वाली प्लेट जो राइट पे आप देख रहे हैं, मुझे ये लेफ्ट वाली पिक्चर बहुत अच्छी लगी है ना, नीचे फैट शैडो में लिखा हुआ आ रहा है और ऊपर फिट ग्रीन से, है ना। तो ये जो राइट पे आप देख रहे हैं प्लेट, तो इसमें आप देखिए पोर्शंस हैं आपके पास। प्रोटीन का एक पोर्शन है इधर आपके पास, जिस तरह ब्रेड या कुछ भी आप न्यूडल्स, चावल, रोटी, अपना जो भी लेते हैं उसका एक पोर्शन है। तो 4 पोर्शंस में से एक एक पोर्शन ये होने चाहिए। और जबकि आपके पास हाफ प्लेट लेफ्ट साइड पे देख लीजिए कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। तो हम लोग अक्सर पोर्शन बनाने में बहुत हमारा गलत है सिस्टम के, हम जो है वो सही चॉइस नहीं ले पाते। तो बिल्कुल आपके पास डाइटिशियन आ रही हैं, तो उस्मा ने बहुत अच्छा किया अरेंज। प्लीज इसको ख्याल रखिए और इसको लिस्ट में रख लीजिए गोल में कि मुझे ख्याल करना है कि फूड को कैसे रखना है। स्लीप के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। ये वाली जो पिक्चर है आपको बता रही है कि जिस तरह आप बिल्कुल मॉडर्न वुमेन काउंसिल में जुड़े हुए हैं, सब मिलके बात करते हैं। उसके अलावा जिस तरह लेट से आप वंस इन अ वीक इधर आके बात कर रहे हैं, तो घर पे कुछ एक्टिविटीज रख लीजिए अपने लिए, कोई कलरिंग की, कोई पेंटिंग की, कोई स्टिचिंग की, कोई निटिंग की। कभी इकट्ठे होके बैठे, अब तो कोविड-19 ही चल रहा है, तो कुछ फ्रेंड वगैरह से किसी से और बीच में वंस इन अ वीक फोन पे बात कर ली। और दूसरा ये है कि ये जो आपके हाथ की एक्टिविटीज होती है ना, जिस तरह आर्ट एंड हैंड क्राफ्ट है, स्टिचिंग हो गया, निटिंग हो गया, क्रोशेट हो गया, ये सब चीजें, क्योंकि आपका ब्रेन उस टाइम पे यूज हो रहा होता है, आप गिन रहे होते हैं खाने के कितने खानों के बाद क्या करना है। इसी तरह घर पे बैठ के आप कुछ और अगर कर रहे हैं एक्टिविटी, तो आप जितना उसको ब्रेन को यूज कर सकते हैं ना, प्लीज वो यूज कीजिए। घरों में सबके पास बच्चे भी होते हैं, उनके साथ कभी लूडो निकाल के खेल ली, कभी और पजल वगैरह बना लिए, तो वो ये कि चलो छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन भी खुश हो जाते हैं।
अपना भी साथ ब्रेन जो है उसकी एक्टिविटी हो गई, मल्टीटास्किंग हो गई एक दफा में। तो ब्रेन को चैलेंज करना जो है ना वो बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रेन को चैलेंज नहीं कर रहे, जिस तरह कोई नंबर है, इवन फोन नंबर, तो आप सोचें कि मैंने मोबाइल पे सेव किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज याद भी कर लेती हूँ उसको, नंबर को खोल के उसको याद कर लिया। कोई और चीज कर रहे हैं उसको देख लिया, कोई अगर देख रहे हैं मूवी वीडियो, कोई बच्चा कुछ कर रहा है तो उससे पूछ लिया कि हाँ मुझे लगा दो, मैं ये लर्न करना चाह रही हूँ कि कैसे इसको बनाना है, कैसे ये चीज करनी है, कोई भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो तो उसको करें। ये ना सोचें कि एक एज जो है वो हो गई है तो अब हम इसको कर नहीं सकते, तो ये अब होना नहीं है। ये हमारे अंदर बहुत है। एक एज के बाद हम सोचते हैं कि ये तो मैं इम्पॉसिबल है मेरे लिए, कि मेरा तो ब्रेन एक एज के साथ, और ये हमारे कल्चर में भी है कहीं पे कि भाई एज के साथ तो ब्रेन डिटीरियोरेट ही होना है ना। नहीं, ये तो रिसर्च प्रूफ ही नहीं करती कि एज के साथ ब्रेन को डिटीरियोरेट होना है। रिसर्च तो ये प्रूफ करी कि आप जितने नए सिनेप्सेस जो हैं उनको कम्युनिकेट कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं। यू हैव सो मेनी अवेलेबल एक्स्ट्रा सिनेप्सेस जो आपने यूज ही नहीं किए कभी भी। 100 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 15,000, इतनी इंफॉर्मेशन हम सेव करते हैं अपने ब्रेन में। नो वे जी उस्मा और नवदिता। रिंटू जी हैं, गुलनाज है, विद्या है। उससे पहले मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि अभी जब कोविड हुआ था तो मॉल्टन विमेन काउंसिल ने मोर देन 75 वेलनेस किट्स दी थी लोगों के घरों में जाके, जिसमें कलरिंग बुक्स भी शामिल थी, उसमें कुछ गेम्स थी, कार्ड्स रखे हुए थे ताकि लोग अपने आप को बिजी रखें, कलरिंग पेंसिल्स थी, एक्टिविटीज थी। और बहुत से लोगों को हमारे ग्रुप में पता है कि कल एक निटिंग की वर्कशॉप हो रही है, और जो इंटरेस्टेड हो आफ्टर दिस सेशन मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। जी परफेक्ट। जी रिंटू जी। जी किरण जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इतना अच्छा, इतने प्यार से इतना वंडरफुल सेशन दे रही हैं हमें। थैंक्स टू उज़मा आल्सो। एंड मैं शेयर करना चाह रही थी कि मेरे फादर को, उनको डायमेंशिया क्या, अल्जाइमर, मेनली अल्जाइमर बोला डॉक्टर ने कि डायमेंशिया हो गया, उसकी टाइप है। आप बोल रहे हो कि अल्जाइमर उसकी टाइप है एक। तो उनका हार्ट सर्जरी हुई पहले, तो उनको हार्ट सर्जरी के साथ पार्किंसन शुरू हो गया, उनके हैंड्स को शेकिंग शुरू हो गई, मतलब पगड़ी बांधना मुश्किल हो गया, ये वो। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू हो गए, है ना। वो भूलते भूलते इतना वर्स्ट हो गया कि मतलब मुंह में और निवाला डाला है तो वो नहीं पता कि वो अंदर करना है कि नहीं करना। मतलब हम लोगों ने बड़ी उनकी मेडिकेशन करी, सारा कुछ करा, सब कुछ मतलब जो करते थे कि चलो योगा भी करवा लो, सब कुछ, जितना फिजियो भी करवाई, सब सारा करवाया, लेकिन चलो वर्स्ट होता 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 मतलब वो रिवर्स नहीं होता, वापस नहीं, वो आया ही नहीं वापस। अल्जाइमर जो था ना वो बहुत वर्स्ट हो गया। चलो उसके साथ हुआ। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही था कि जैसे अब वो तो आप बता रही हैं कि आजकल सबको ही भूलने की बीमारी, मेरे को भी होता है कि कभी बात करते करते वर्ड ही भूल जाता है, दिमाग से निकल जाता है। तो मैं पूछना ये चाह रही थी कि जैसे ये जेनेटिक भी, मतलब उनको तो वैसे हार्ट सर्जरी के बाद शुरू हुआ था ये सारा, जब उनकी हार्ट सर्जरी हुई, तो ये हो सकता है कि हम लोगों को भी ऐसे वो, जबकि मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, योगा भी करती हूँ, अपना सारा मतलब पूरा मेरा उसमें है, लेकिन फिर भी कई बार हाथ नम हो जाते हैं। जब मैं यहाँ से उठ के खड़ी होंगी तो मेरे को एकदम से ऐसे लगेगा कि जैसे ब्लैंक, मतलब ब्लैक हो गया बिल्कुल सारा, एक सेकंड के लिए लगेगा कि बिल्कुल ब्लैक हो गया। तो वो मतलब मेरे को लगता है कि वो जेनेटिक भी हो सकता है ये सारी चीजें। जो आप चीज पूछ रही है ना, सबसे पहले तो मैं उधर आती हूँ जेनेटिक की तरफ, आपका सवाल बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं ना, देखिए वो ये हो रही है कि अगर ओवरऑल मैं कहती हूँ बड़ी पिक्चर लेना पहले थोड़ी सी, कि हम क्या बात करें। हम बात ये कर रहे हैं कि हम में से कोई ना कोई जो है उसके घर में कोई ना कोई मेंबर, ठीक है, सारे नहीं लेकिन किसी ना किसी के घर में एक, आप सोच सकते हो कि कोई ताई जान, कोई दादी, है ना, कोई अंकल, कोई किसी के इन लॉज में, या किसी कहीं ना कहीं हमें एक्सपीरियंस हुआ है कि हाँ चाहे डिमेंशिया की कोई टाइप हुई है, अल्जाइमर हुई है, पार्किंसन हुई है,
और फिर उसके बाद हमें ये भी पता चल रहा है कि किसी को जो है वो दवाई का रिएक्शन हुआ, ठीक, किसी, मुझे दूसरी जो यहाँ पे याद है कि अच्छा आपने बताया कि हार्ट के बाद स्ट्रोक का बताया था, है ना डॉक्टर जमशेद ने, और पार्किंसन के बाद, है ना। तो अब ये देखिए कि इसमें पीछे थोड़ा सा चले जाए ना कि डिमेंशिया या जो भी टाइप हुई डिमेंशिया के उससे पहले क्या चल रहा है, उससे पहले क्या चल रहा है, उससे 10 साल पहले, उससे 15 साल पहले ये आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है 15-20 साल पहले कि हार्ट जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, स्ट्रोक के चांसेस हैं, पानी जो है उसकी इनटेक नहीं, उस अपना ख्याल नहीं किया गया कहीं ना कहीं, ठीक है। तो या फिर मुझे पहले याद है कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि डायबिटीज थी, है ना, तो डायबिटीज थी तो कितना उसका ख्याल किया गया, वो कितने नंबर कंट्रोल में रहे। अब आप जो बात कर रहे हैं कि बैठ के खड़े होना एकदम से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई विटामिन लेवल्स और आयरन तो मेरा सीधा जाता है उस तरफ कि आयरन लेवल्स जो हैं वो शायद कम हैं, ठीक है। तो जब ये लेवल्स हमारे, हम ध्यान नहीं करते, रेगुलर फिजिकल चेकअप नहीं करते, हमें पता है हार्ट की कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है, और हमें ये भी पता है कि फैमिली में चल रही है कि अगर मेरे फादर को 50 इयर्स में हार्ट का प्रॉब्लम पहली दफा डायग्नोस हुआ था तो वो बच्चे में आएगा 40 इयर्स में, 10 साल पीछे डॉक्टर साफ कहते हैं आप कि आप उसका ख्याल करो। तो अब मुझे पता है ये चीज, और मैं फिर भी जो है मैं ठीक है अपना, कभी मैंने योगा कर लिया या एक्सरसाइज कर ली, लेकिन मुझे ब्लड लेवल्स का पता ही नहीं, मैं डॉक्टर पे जाना नहीं पसंद करती, मेरे विटामिन लेवल्स जो हैं वो बाकी न्यूट्रिएंट्स कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं, पता मैं अगर शक है अपनी चेकअप, मतलब हार्ट की भी मैंने बोला, हाँ सॉरी, नहीं वो मैंने मैं हार्ट की आपसे भी भी पूरी रिलेट करें, चेकअप आपके करवाई, क्वेश्चन के आंसर पे फिजिकल नहीं भी। आई मैं अभी, सॉरी आपके क्वेश्चन के आंसर पे नहीं आई, ठीक है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, है ना। तो ये चीजें जो है वो मुझे अभी से इनका ख्याल करना है ना, और अपने बच्चों को भी एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ लेके आना है, क्योंकि हम लाइफस्टाइल हमारा बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि जिससे हम बैठे जा रहे हैं एक जगह। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आती हूँ, मैं जरूर कहूंगी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जीन जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती है, एंड वी आर नॉट येट अवेयर और श्योर कि आपके फादर के जीन की वजह से, वो जैसे आप कह रहे हो कि हार्ट की वजह से बात होगा, तो हार्ट की तो जो वस्कुलर प्रॉब्लम, धन्यवाद, थैंक यू साहब। कौन जा रहा है थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत ही कमाल दियां गल्लां सुनाइयां, बहुत खुशी हुई है। हाँ तो जी आप टाइम